रहे to stretch our course कि 6 महीने का कोर्स है इसमें सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है. So we are covering 99% of those things that you will be using on day-to-day basis, right? So what is important, what is not, there will be some things that may be outdated for the market, right? वो चीजें यूज नहीं होंगी, but you will find those in curriculums, in videos, in different courses over the web, over offline courses on different institutes. So we have optimized this course in such a way that people can get job after 3.5, 4 months, right? So so this was about myself. So I have close to 8 years of experience into this field. Started with working on SAS, then we moved to R, industry moved to R, then Python came into picture. So it has been a great journey so far. तो वही सारी experience जो मेरा पिछले 7-8 साल का experience है, वो सारा experience हमने इस course में डाला है, right? So we can assure you कि इस type का curriculum, इस type का material, there is you won't find that over the net, over the web, or in any institute, the way we have optimized it in a way, right? So this is our batch number 36. Every batch, in every batch we have close to 15-16 people. तो हर बैच से जो भी हमारी लर्निंग मिलती है, जो भी लोगों को इंटरव्यू देते हैं, so we keep on upgrading ourselves as well. So we are at a stage where we believe we can help people transitioning into a data science career, into analytics career very easily, right? So this is what the focus area is, to make people job ready by giving them the practical platform that is required, right? So in terms of a balance between the theory and the practical, तो हर चीज हम practical sense में करेंगे. हर project हम end to end class में बना के देख रहे हैं. It's not like कि एक आध project करवा दिया और बोला कि we are done for the course. It's not like that. Everything we are covering end to end in the course itself, and the same things will be given to you in the assignment. So we will have a lot of assignments, lot of projects that we will be going through, and at the same time understanding the backend theory is very important. So we are covering the backend theory as well कि एक algorithm ने हमें बता के दिया कि probability of you winning the game is this much, right? Or probability of India winning the match is this much. तो उसने ये probability कैसे निकाल दी, right? Machine ने ये चीज कैसे evaluate करी data से, right? तो behind the scene कैसे algorithm चल रहा है? Interviewer will be interested in that. और real world में तुम्हें practical काम करना होगा कि वो निकाल के दो मुझे, right? So we are covering both the things at the same time, right? Keeping a balance of everything, right? So this was about the entire course. Okay, I'll open up to you in the end. In last 15 minutes, we'll have the question answer session where you can ask your questions, your doubts, your things about the course. So let me know when you are able to see my screen. I'm sharing my screen. I can see. You can see, right? Okay. Yeah. So मैं आपको पहले curriculum बता देता हूँ. What all we are covering. We have shared curriculum with everyone, I believe, right? So हर किसी ने I think curriculum तो एक बार देखा होगा. So we will take you deep into that कि हम क्या चीजें cover कर रहे हैं, कैसे cover कर रहे हैं, how that can help you in terms of learning, in terms of showing your current experiences. So this course is divided into 5 modules. ठीक है, तो ये जो course है basically पहले data science है क्या? Before going deep into what we are covering, it's important to understand what data science is, right? हम करते क्या data science पे, क्या field है ये? You must be all of you must be from different fields. Some of you must have an idea about what data science is, but बहुत सारे लोगों को maybe idea ना हो. तो कितने लोग हैं जिनको data science का पता है? Just want to know on a high level so that I can talk in that language only. We have 18 people. So I want to understand how many of you are aware of what data science is. Chat में बोल सकते हो, लिख सकते हो हाँ ना, या ऐसे ही बोल सकते हो yes yes no no yes no.
Yes, not much, little bit. Okay. 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 So I believe it's a mixed crowd. Some people have idea, some people have a little idea, some people may not have any idea. तो बेसिकली डेटा साइंस है क्या? इट्स डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग. अगर हम आज से 10-12 साल पीछे चले जाएं तो देयर वाज internet was not a big thing, right? We used to go into cyber cafes to access internet. There was no term like e-commerce, right? There was no term like online shopping, right? There was no term like customer, right? Digital was not a term, right? Social media was not a term. Orkut came as the first thing in India, right? तो ये सारी चीजें जो भी थी ये पिछले 10 साल में ही हुई हैं, राइट? तो पिछले 10 साल में इतना ज्यादा डेटा जनरेट हो गया जितना हमारे पास उससे पहले 1000 years में था, राइट? तो ऐसे सोच लो कि सब कुछ पिछले 10 साल में ही हुआ है. द रेवोल्यूशन हैज कम इन लास्ट 10 years बिकॉज ऑफ emergence of internet in a human being's life, right? तो इसके कारण क्या हुआ, डेटा अब इतना ज्यादा जनरेट हो गया कि पहले जो आईटी वर्ल्ड था, दिस इज अ पार्ट ऑफ आईटी वर्ल्ड, राइट? तो आईटी वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइडेड था, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, राइट? इधर वी आर अ कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को, ठीक है, जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती थी, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट एज अ लाइसेंस बिक रहे हैं तो उनसे पैसा आ रहा है उनको. या वी वर इनटू सर्विसेज, आई एम इन्फोसिस, टीसीएस, एक्सेंचर, ठीक है. मैं प्रोजेक्ट उठाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं आपके लिए वेबसाइट बना दूंगा, मैं आपके लिए ऐप बना दूंगा, मैं आपके लिए ये चीज दूंगा, मैं आपको सपोर्ट दूंगा, राइट? मैं अपने बंदे दूंगा. तो इधर वी वर इनटू सर्विसेज सपोर्ट मॉडल और वी वर इनटू प्रोडक्ट मॉडल, राइट? अब पिछले 10 साल में इतना ज्यादा डेटा जनरेट हुआ कि कंपनियों को पता लगा कि व्हाई नॉट यूज दैट डेटा टू टू to earn money out of that, right? Data can be another source of income for us, right? Data can be another channel of earning revenues, right? तो डेटा से भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं. ये उनको समझ आया कि डेटा इतना ज्यादा जनरेट हो गया तो डेटा कैन गिव अस लॉट ऑफ इनसाइट्स, राइट? तो दिस फील्ड बिकेम डेटा साइंस, राइट? आज से 7-8 साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड there was no term like data science, right? We used to call it as business analytics or data analytics, या इसको हम बोलते थे ये स्टैटिस्टिशियंस की फील्ड है, राइट? फिर विद एमर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज, ओपन सोर्सेज, चीजें रीब्रांड होती गई. फिर हमें पता लगा डेटा जो है वो नंबर्स ही नहीं है, इमेज भी एक डेटा है, वॉइस भी एक डेटा. मैंने कस्टमर केयर के साथ बात करी और मैंने बोला मैं छोड़ रहा हूँ, द प्लान इज नॉट गुड. एक बंदे ने बोला कि आई एम गेटिंग अ बेटर प्लान और द चार्जेस आर हाई. एक ने बोला सर्विस अच्छी नहीं है. तो उन कस्टमर्स की ये जो बातें हुई हैं ये वॉइस की फॉर्म में हुई हैं, राइट? ऑडियो की फॉर्म में हुई हैं. तो इस कन्वर्सेशन में बिजनेस का रीजन छिपा हुआ है कि लोग क्यों छोड़ रहे हैं, राइट? ये किसी नंबर की फॉर्म में किसी डेटा में स्टोर नहीं है. द कन्वर्सेशन इज द रीजन, द कन्वर्सेशन इज स्टोरिंग दैट रीजन ऑफ व्हाई पीपल आर चर्निंग, व्हाई पीपल आर लैप्सिंग, व्हाई पीपल आर लीविंग, राइट? तो हमें समझ लगा कि हम एक टेक्स्ट डेटा को भी एनालाइज कर सकते हैं, एक साउंड को भी एनालाइज कर सकते हैं, एक इमेज को भी एनालाइज कर सकते हैं. तो एवरीथिंग इज डेटा फॉर अस, राइट? तो पहले ऐसा नहीं था. पहले वी यूज्ड टू हैव स्ट्रक्चर डेटा, जैसे एक्सेल में डेटा होता है, टेबुलर डेटा. तो हमारे लिए वही डेटा था, राइट? उसी पे हम कुछ कुछ काम करते थे. बट हमें पता लगा कि वी कैन with open sources and with a lot of advancement in technology, we can process images, we can process text. हम एक टेक्स्ट डेटा पढ़ के, मेरे पास 1000 आर्टिकल्स हैं लोगों के आईफोन पे. उन्होंने आईफोन, जस्ट एन एग्जांपल, डेटा साइंस में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इफ यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जांपल. आईफोन एक नया लॉन्च हुआ है 2 हफ्ते पहले, एक नया मॉडल, ठीक है. नाउ द कंपनी वांट्स टू अंडरस्टैंड कि इसकी मार्केट में क्या क्या रिव्यूज रहे हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में, राइट? तो मैं कैसे जान सकता हूँ? आई एम एप्पल, राइट? तो मैं जानना चाहता हूँ कि 2 हफ्ते पहले जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, व्हाट इज द कस्टमर व्यू अबाउट आवर प्रोडक्ट? एनी गेसेस, हाउ कैन वी डू दैट? So one can be the number of sales, right? One can be the number of sales. सेल्स तो अलग बात है. हमने उस एप्पल आ रहा है, एप्पल का पहले ही ब्रांड वैल्यू तो बिकेंगे, बट मे बी फंक्शनैलिटी वाइज वो उतने अच्छे ना हो, या मैं बोल लूं कि कुछ भी एडिशनल ऐड नहीं हुआ, दिस इज नॉट गुड, दिस इज द प्रीमियम फीचर जो इन्होंने डाला है. तो मैं कस्टमर किस बारे में बात कर रहे हैं वो जानना चाह रहा हूँ. सेल्स तो बढ़ेगी, सेल्स तो एप्पल इज द
नंबर 1 प्लेयर, तो सेल्स तो उनकी अच्छी हुई है, ये हमारी अजम्पशन है कि सेल्स इज गुड। व्हाट एल्स? कस्टमर का फीडबैक ले सकते हैं हम। फीडबैक कहाँ से लोगे? अब वो फ्लिपकार्ट पे भी बिका है, वो स्टोर पे भी बिका है, वो एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से भी बिका है, फीडबैक कैसे ले लोगे? 1 करोड़ लोगों ने आईफोन खरीद लिया पिछले 2 हफ्तों में, राइट? तो अपने फीडबैक तो करेंगे ही ना वो अपने। क्यों फीडबैक करोगे? मैंने आज तक फीडबैक नहीं डाला फोन का अपने किसी का। आपने डाला? नहीं डाला ना, तो फिर कहाँ से मिलेगा? कहाँ से डेटा मिल सकता है ऐसा वाला? किसने वो whoever has searched on Google about that phone and who have seen the like ads most, I mean I don't know, the search they do on phones on the Google, maybe from that. हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या राय है किनसे जानना चाहेंगे? जिन्होंने खरीदा होगा, राइट? उनसे। अब वो कॉमन प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है जहां से मैं ये चीज जान लूं? इट कैन बी अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल ट्विटर, राइट? और चैनल फ्लिपकार्ट से बहुत सारे लोगों ने खरीदा, बट वहां पे कमेंट हर बंदा नहीं डालेगा। कोई खराब होगा, जिसको पसंद ना आया उसने मे भी डाला हो, या कोई बहुत ही खुश हो गया उसने डाला हो, राइट? नॉट एवरीवन विल बी पुटिंग कमेंट ऑन फ्रॉम दी ऑन दी ऐप जहां से हमने खरीदा होगा, राइट? बट एक सोशल मीडिया डेटा ऐसा हो सकता है जहां पे लोग उसके बारे में बात करना चाहें, राइट? बिकॉज आज के दौर में कोई भी चीज हम करते हैं तो वी ट्राई टू पुट अ पोस्ट ऑन टॉप ऑफ दैट, राइट? तो हमने क्या बोला कि पिछले 2 हफ्ते में आईफोन 13 आया, फॉर एग्जांपल आईफोन 13 वर्ड जितने भी ट्वीट्स में यूज हुआ है, पुल ऑल दोस ट्वीट्स, ट्विटर से सारा डेटा उठा लो, तो हमारे पास 50 लाख लोगों का डेटा आ गया। मेरे 1 करोड़ फोन उठे थे, बट 50 लाख मेरे पास ट्वीट्स आ गए। नाउ इन 50 लाख, दिस इज अ बिग सैंपल, राइट? इन 50 लाख सैंपल्स पे, इन 50 लाख ट्वीट से आई कैन एनालाइज की ट्रेंड किस और है, राइट? इस डेटा को मैं पास करके समझ सकता हूँ कि लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं या नेगेटिव बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बातें कौन सी कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कौन सी कर रही है। नेगेटिव बातों में पता लगा बैटरी इज नॉट गुड, कि हमने अब वो बनाया वायरलेस चार्जिंग कर दिया, दिस फीचर इज नॉट लाइक्ड बाय लॉट ऑफ पीपल, राइट? साइज जो है वो बड़ा कर दिया है, ये भी फीचर पसंद नहीं आया। पॉजिटिव में कौन से मेन 4-5 वर्ड आए, राइट? ये चीजें पहले नहीं हो सकती थी। क्यों? इसके लिए क्या है, बंदा चाहिए जो पढ़े समझे, अंग्रेजी जिसे आती हो वो बताए। बट हाउ कैन आई मेक मशीन लर्न कि ये बंदा नेगेटिव बात कर रहा है, ये बंदा पॉजिटिव बात कर रहा है, राइट? हाउ कैन आई मशीन learn and summarize the context of the tweet that person has written? समझ रहे हो? दिस इज द पावर ऑफ मशीन लर्निंग, कि हमने मशीन को लैंग्वेज भी सिखा दी है, राइट? तो इस तरीके की चीजें हम इस कोर्स में करेंगे। वी विल बी डूइंग एनएलपी का एक प्रोजेक्ट, जिसमें हम, मेरे पास 5000 न्यूज आर्टिकल्स हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इस आर्टिकल को मशीन, नॉट ह्यूमन बीइंग, मशीन क्या करे, शफल कर दे। स्पोर्ट्स वाले आर्टिकल अलग कर दे, पॉलिटिक्स वाले अलग कर दे, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना वाले आर्टिकल अलग कर दे। हाउ कैन आई मेक श्योर कि ये चीजें मैं कर दूं? तो मशीन को हमने बोला कि 5 हिस्सों में ये न्यूज को तोड़ दो, ठीक है? मशीन बोले कि ये रहे 400 डॉक्यूमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, ये रहे 1000 डॉक्यूमेंट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस, ये रहे। तो इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, आई नो कि कौन से सिमिलर आर्टिकल्स होंगे, किसको रूट करना है। वैसे ही कस्टमर केयर को लोग फोन कर रहे हैं, राइट? अब किसी ने कोई बात करी है, किसी ने कोई बात करी है, हमने क्या करा, साउंड को टेक्स्ट में कन्वर्ट करा और ऐसा एल्गोरिथम चलाया जिससे मैं सही टिकट रूट कर सकूं, राइट? ये बंदा नेटवर्क रिलेटेड इशू है, तो नेटवर्क वाले डिपार्टमेंट को ये टिकट ऑटोमेटिकली ऑन द फ्लाई चले जाए। बंदा ना सोचे कि अच्छा इसने ये बोला है, ओके दैट मींस वो नेटवर्क से खुश नहीं है, नेटवर्क वाले डिपार्टमेंट को मैं मेल लिखता हूँ, राइट? ऐसा ना, ऑन द फ्लाई मशीन ये सारा काम करे जो ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं। दिस इज पावर ऑफ डेटा साइंस, राइट? तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हम इस कोर्स में देखेंगे, और थ्रू विच वी कैन ऑटोमेट आवर प्रोसेस। तो डेटा साइंस का मेन मकसद क्या है? डेटा से लर्न करना, जिससे हम चीजें ऑटोमेट कर सकें और बहुत सारा क्या कर सकें, टाइम सेव कर सकें और पैसा बना सकें, चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकें, राइट? अब ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम देखते हैं। ये तो था ह्यूमन बीइंग्स का एफर्ट सेव करने का, ठीक है? यहाँ पे तो बंदा जो काम कर सकता था उसकी जगह मशीन ने काम कर दिया। दिस इज वन सेट ऑफ एग्जांपल जो डेटा साइंस में कर सकते हैं। अनदर सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हम कर सकते हैं वो है कॉस्ट प्रॉफिट। हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना, राइट? अब वो पैसा कैसे कमा सकते हो तुम? अपनी कॉस्ट कम करके और रेवेन्यू बढ़ा के, राइट?
राइट? यही है, मैं कम पैसा लगाऊं और रेवेन्यू बढ़े, ये चाहता हूं मैं, हर बिजनेस यही चाहता है, राइट? तो डेटा से ये कैसे पॉसिबल है? एन एग्जांपल ऑफ द सेम थिंग इज, फॉर एग्जांपल, मैं आई एम एयरटेल, राइट? आई एम द बिगेस्ट प्लेयर, मेरे 10 करोड़ कस्टमर्स हैं इंडिया में, फॉर एग्जांपल। Every year from 2017, 18, 19, I saw around 5% customers lapse. 5% customers lapse का मतलब वो एयरटेल छोड़ के जियो चले गए, कहीं और चले गए, राइट? तो 5%, 10 करोड़ कस्टमर है मेरे, तो 5% का मतलब हो गया कितने हो गए? 50 लाख। तो 50 लाख कस्टमर रफली हर साल मूव कर जाते हैं इधर से उधर, राइट? नए भी जुड़ते हैं बट पुराने चले जाते हैं। नेट मेरा 3 साल से देख रहा हूँ, तो मेरा रफली कस्टमर बेस 10 करोड़ के आसपास ही है, बढ़ा नहीं है ना ही कम हुआ है, कुछ गए कुछ आए, राइट? तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, कस्टमर बेस नहीं बढ़ रहा। दिस इज द बिजनेस प्रॉब्लम। अब एयरटेल वाले एक डेटा साइंस कंपनी के पास आए, वो कह रहे हैं हेल्प अस इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। हर साल 50 लाख लोग चले जाते हैं, ठीक है? हम ये लोग बचाना चाहते हैं, नए लोग तो जुड़ते हैं बट पुराने स्टे नहीं कर पा रहे हम, राइट? दिस इज द प्रॉब्लम। अब ये लेमैन प्रॉब्लम है, ठीक है? दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट। इसको अब मैं एक मशीन लर्निंग डेटा साइंस प्रॉब्लम कैसे बनाऊं? दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव, राइट? इससे हम पैसा कमाएंगे। अब सिनेरियो समझो, अभी तक हम क्या कर रहे हैं? 50 लाख लोग जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, जा रहे हैं। इस साल भी क्या होगा? इस साल भी क्या होगा? They will move from, they will switch to other. इस साल भी यही होगा, हर साल का ट्रेंड ये है। तो इस साल भी हम क्या है? वी हैव द चांसेस कि यही होगा, राइट? तो वी हैव द चांसेस कि यही होगा। अब मुझे पता है कोई चीज होने वाली है, तो ऑब्वियसली कोई चीज अगर होने वाली हो तो मैं क्या करना चाहूंगा? वो चीज ना हो, उसके लिए मैं प्रिकॉशन, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज पहले से ही बनाना चाहूंगा। अगर मैं बोलूं 6 महीने बाद आपके साथ ऐसा होने वाला है, तो यू विल ट्राई टू मेक श्योर वो सिचुएशन ना आए। यही चीज हम डेटा साइंस में करते हैं। मुझे पता है इस साल 2020 में या 21 कुछ भी लगा लो, 20 लाख लोग 50 लाख लोग छोड़ के चले जाएंगे। बट अब मुझे, मेरा कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, 10 करोड़, मुझे नहीं पता ये 50 लाख लोग कौन है, राइट? तो मैंने क्या किया, अब मैं एक नॉन टेक्निकल मैनेजर हूँ जिसको डेटा साइंस नहीं पता। हमने क्या बोला, यार बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं तो प्लान सस्ते कर देते हैं, लोग बच जाएंगे, लोग नहीं छोड़ेंगे, राइट? तो हम पहले लोगों से ले रहे थे 600 रुपए पर मंथ, अब मैंने कर दिया प्लान 400 रुपए पर मंथ, राइट? अब हमने क्या कर दिया, 400 रुपए पर मंथ। तो मेरे 10 करोड़ कस्टमर्स हैं, ठीक है? अब हमने क्या कर दिया, 600 रुपए आ रहे थे पर मंथ एक कस्टमर से, अब क्या आएंगे? अब उनसे हम क्या ले रहे हैं? 400। ठीक है? इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो लोग छोड़ने वाले थे 5%, कितना हुआ? 50 लाख। 50 लाख जो छोड़ने वाले थे, प्लान सस्ते करने से क्या हुआ, इनमें से 20 लाख लोग रुक गए, ठीक है? बट तुमने उन लोगों के प्लान भी सस्ते कर दिए जिनको चाहिए ही नहीं था। जो बंदा 600 दे सकता था, उससे कितने ले रहे हो अभी? 400. 400। तो जो 600 दे सकता था उससे हम 400 ले रहे हैं। तो हमने पहले कस्टमर जाने से हमारा नुकसान हो रहा था, अब सस्ता बेचने से वहीं पे हम, तो नेट हम वहीं पे रहे। पहले कस्टमर स्टे नहीं कर पा रहे थे, उस चक्कर में वी वर लूजिंग अमाउंट। बट नाउ क्या हुआ कि हमने अपना रेवेन्यू ही नीचे कर दिया है, हमने पहले ही रेवेन्यू, तो नेट आज भी प्रॉब्लम वहीं पे रही, आज भी रेवेन्यू उतना ही है। मैंने कस्टमर बचा लिए थोड़े बहुत बट रेवेन्यू नहीं बढ़ा, राइट? नाउ what to do? Now we need data science, now we need machine learning। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि मैं तुम्हें ढूंढ के दूंगा इस भीड़ में से वो 50 लाख कस्टमर कौन से हो सकते हैं जो छोड़ के जाने वाले हैं। आई विल ट्राई एंड फिगर आउट, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या बोलेंगे, वी विल फिगर आउट हु विल बी दोज पोटेंशियल 50 लाख कस्टमर्स who have higher likelihood, who have higher probability to leave as compared to other। अब मैंने 50 लाख लोग आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है? अब मैं इन 50 लाख लोगों का क्या करूंगा, प्लान करूंगा 400, राइट? इनमें से बच गए
20 लाख, सारे नहीं बचेंगे, जिसको मैं 400 दूंगा, जिसको जाना है वो चला ही जाएगा, ठीक है। तो आज फिर से मैंने उतने बचा लिए। बट इस बार क्या हुआ, इस बार तुमने सिर्फ 50 लाख लोगों के 400, बाकी जो लोग थे तुम्हारे कितने 9 करोड़ 50 लाख, ठीक है, ये लोग आज भी कितना पैसा दे रहे हैं तुम्हें, कितना दे रहे हैं 600 पर मंथ, राइट। तो जिससे क्या हुआ, तुमने थोड़ी सी कॉस्ट लगाई है सिर्फ उन्हीं लोगों पे, और उन लोगों को बचा भी लिया है। तो नेट नेट तुम अब इस साल क्या होगा, तुम्हारा प्रॉफिट ऊपर चला जाएगा, राइट। थोड़े से पैसे खर्चे और कस्टमर भी बचा लिए, और उनसे तुम्हें रेवेन्यू भी आ रहा है। तो दिस इज द पावर ऑफ डेटा साइंस। यू कैन आइडेंटिफाई दीज थिंग्स, जो चीज फ्यूचर में होने वाली है, यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट दैट दोज थिंग्स अहेड ऑफ टाइम, राइट। इससे क्या होगा, योर कॉस्ट विल बी लोअर। पहले हम क्या कर रहे थे, सब लोगों का पैसा कम कर रहे थे, अब मैंने उसी का कम किया है जिसके जाने के चांस है, ये आइडेंटिफाई किया, उसी का कम किया, तो मैंने बहुत 5% लोगों पे कॉस्ट लगाई है, 5% से मैंने 3% लोग बचा लिए, तो मेरे थोड़े से पैसे में मैं कस्टमर बचा पा रहा हूँ, तो मेरा रेवेन्यू जो है वो क्या होगा, ऑन द हायर साइड। जिससे क्या हुआ, जो मेरा पिछली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी, राइट। नाउ यू हैव अ हायर रेवेन्यू एंड यू नो किसको बचाना है किसको नहीं, who is likely to churn and who will not churn, यही तो मुसीबत है ना, रात को सो सकते हैं। आज एक कॉल थी उसमें भी नहीं, वो भी नहीं छुट्टी दे देना 10%, किस्मत। म्यूट पे चले जाओ म्यूट पे चले जाओ, म्यूट पे रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर वो खराब हो जाती है। जो लोग अनम्यूट है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जब आपको सवाल पूछना हो देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, बाय दैट टाइम म्यूट पे रहो, सो दैट डिस्टर्बेंस ना हो कोई पीछे, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ डेटा साइंस, दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है, जिसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चर्न मॉडल। हु इज लाइकली टू चर्न, कौन सा कस्टमर छोड़ने वाला है, जो कस्टमर छोड़ने वाला है उसको टारगेट करो, उससे बचाने की कोशिश करो, बचाने की कोशिश किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ तुम्हें 4 GB डेटा डेली देंगे, इससे भी वो कुछ लोग कस्टमर बच सकते हैं, मैं प्लान सस्ता कर दूं उससे भी बच सकते हैं, मैं डिस्काउंट दे दूं उससे भी बच सकते हैं। तो हर इंडस्ट्री की अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। So these are the kind of projects that we do. So every project in data science is a $1 million project, right? इसीलिए people who are working in data science have far more higher salaries as compared to rest of the industries, because the scope is very wide, और डेटा एक ऐसी चीज है जो हर कंपनी के पास है, राइट। हर कंपनी, कोई कंपनी हो सकती है डेटा और कस्टमर के बिना, राइट। देयर कांट बी अ बिजनेस मॉडल विदाउट अ कस्टमर and data, right? When there is a customer there has to be data, right? So Ola, Uber, Swiggy, Facebook, Zomato, Microsoft, Amazon, कुछ भी सोचो, तो there will be a customer, there will be a data, right? तो हर कंपनी डेटा साइंस में काम करती है, तो इसलिए the scope is very wide, the opportunity areas are huge, but वही है कि लोग कोर्स करते हैं, but उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया है, right? Here the idea is to make sure whatever we are talking, we make sense, and we are learning at the same time, and we are implementing at the same time, and we are getting benefits out of that after a few months, right? This is the idea of entire course. अभी तक कोई सवाल? Where we learn this thing? I mean, हम डेटा साइंस की किस पे सीखेंगे, कोई टूल होगा या क्या? हाँ, उस पे आ रहे हैं अभी। अब तो डेटा साइंस हम जो भी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑन पाइथन। तो पाइथन इज द लैंग्वेज जिसके ऊपर हम डेटा साइंस कर रहे हैं। ये जो खुला हुआ है, ये जो कोड आपको दिख रहे होंगे, जैसे मैं एक स्क्रीन खुली हुई है, ये जो स्क्रीन है, ये दिस इज पाइथन कोड, ये पाइथन का कोड है। और ये जो सॉफ्टवेयर है, दिस इज स्पाइडर, दिस इज GUI on which we write Python code, right? This is a platform. We'll come to these details later on, and that's not the point of concern for us. हर काम हम Python में कर रहे हैं. This course is all about doing things in Python. So Python की market में demand है, and there are very less people who
और जिनको एंड टू एंड चीजें पता है। पाइथन में मॉडल बनाना बहुत कम लोगों को पता है आज भी, ठीक है। बेसिकली हम पाइथन में मॉडल बनाएंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, मॉडल बनाएंगे, स्टैटिस्टिकल चीजें एनालिसिस करेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो सब काम हम पाइथन से। आपको डेटा दे दिया, डेटा से कुछ भी कर सकते हो। मैंने बोला डेटा हिस्टोरिक डेटा क्या बोल रहा है, आज तक क्या बोल रहा है डेटा, राइट, उसके बेस पे एक रिपोर्ट बना के दो, या मैं बोलूँ कि चार्ट वार्ट बना के दो, या मैं बोलूँ कि अच्छा ठीक है अब वो जो हिस्टोरिक एनालिसिस है उसके बेस पे फ्यूचर में क्या होने वाला है ये बताओ। तो अगर फ्यूचर प्रेडिक्शन इन चीजों में चले जाते हैं तो वहां पे हम मॉडलिंग में, मशीन लर्निंग में चले जाते हैं। दैट इज Okay. machine learning, artificial intelligence, when we are trying to learn from the previous data and predicting something of future, right? That is modeling या machine learning. तो इसमें 5 मॉड्यूल है इस कोर्स में. Let's go to those things. So 5 modules we have. हाँ जी. Hello. Yes, yes. You can ask your question. हेलो, मेरी आवाज नहीं जा रही है। I can hear you. actually I have a question, Ritika this side. What are the prerequisites for this Python? Because like for data science you told that we need to know Python. There are like various models and analytics. So for Python, basically like just wanted to understand that how much programming background knowledge we should have or something You else. need not to know anything. Everything is being covered from scratch in this course. Python के Okay. a equal to 1 से लेके a plus b से लेके everything we are covering. We are assuming you know nothing, right? ठीक है, ऐसा assume करके हम चल रहे हैं. This is the way we have designed the course. Assuming you know nothing about programming, you know nothing about math stats. ठीक है, तो इस फील्ड जो ये फील्ड है डेटा साइंस, इट्स मिक्स ऑफ 3 थिंग्स. ठीक है, बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज. यहाँ पे प्रोग्रामिंग जो पाइथन की प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग नहीं है, इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है सारी चीजें. तो किसी बंदे को अगर प्रोग्रामिंग नहीं Okay. आती तो ये कोर्स उनके लिए है, राइट. जैसे हमारे सी, सी प्लस प्लस, जावा, .NET ये लैंग्वेजेस होती है, द कोर डेवलपमेंट लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैंग्वेजेस है ये. यहाँ पे हार्डकोर कोडिंग यूज होती है. बट डेटा साइंस में पाइथन है तो एक कोडिंग लैंग्वेज, बट पाइथन 2 तरीके की है. पाइथन फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पाइथन फॉर डेटा साइंस. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें आपको स्क्रैच से कोड लिखने पड़ते हैं, बट जो पाइथन फॉर डेटा साइंस है उसमें सारी चीजें पाइथन ने ऑलरेडी फंक्शन में बना के रखी हैं, राइट. जैसे मैंने बोला डेटा को ट्रांसपोज कर दो, रोज को कॉलम्स में कर दो, कॉलम्स को रोज में कर दो. ये काम अगर आपको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना है तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, राइट. बट यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन बना है ट्रांसपोज, दैट्स इट. ब्रैकेट में लिखा डेटा का नाम, उसने ट्रांसपोज कर दिया, खत्म. मैंने बोला प्राइम नंबर्स क्या है, राइट. एक सिंपल प्रोग्राम प्राइम नंबर का, बट उसको भी किसी और लैंग्वेज में करने के लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा, लॉजिक लिखना पड़ेगा, राइट. यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन बना है प्राइम, बस तुमने लिखा प्राइम, ब्रैकेट में नंबर डाल ले तो खुद ही बता देगा इनमें से प्राइम कौन से है, इवन कौन से है, ऑड कौन से है. देयर इज नो प्रोग्रामिंग इन शॉर्ट, राइट. देयर इज हार्डली 5% ऑफ द टाइम्स जहाँ पे तुम्हें कुछ खुद से लिखना पड़ेगा. रेस्ट एवरीथिंग हैज बीन ऑलरेडी बीन कोडेड बाय पाइथन इन फॉर्म ऑफ फंक्शंस एंड पैकेजेस, राइट. तो Okay. Thanks. अगर आपको बैकग्राउंड, वी आर नॉट अज्यूमिंग एवरीथिंग, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ. आफ्टर दिस यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस अगेन. तो 5 मॉड्यूल कवर कर रहे हैं हम. पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट ये पाइथन इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला पाइथन. इट्स पाइथन ऑफ इट्स फंक्शनल पाइथन, जिसमें हर चीज ऑलरेडी बनी हुई है. यू डोंट हैव टू कोड. इफ समवन इज नॉट अवेयर ऑफ कोडिंग तो उसको डरने वाली कोई बात नहीं है इस कोर्स में, ठीक है. तो फंक्शनल कोडिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है. जैसे एक्सेल होता है, राइट. एक्सेल में हम कोड थोड़ी लिखते हैं, हर चीज बना हुआ है, काउंट, इफ, सम, फंक्शंस बने हुए हैं. तो वैसे इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं, हम कोड नहीं लिख रहे उसके लिए, लॉजिक नहीं लिख रहे कोई, ठीक है. दिस इज फर्स्ट मॉड्यूल दैट वी आर कवरिंग. सेकंड मॉड्यूल हमें, तो पाइथन में हम क्या कवर कर रहे हैं कि मैंने आपको डेटा दिया, वो डेटा एक एक्सेल में पड़ा है, CSV फाइल में पड़ा है या नोटपैड में पड़ा है, उसको हम इंपोर्ट कैसे करेंगे पाइथन में. तो किसी और प्लेटफॉर्म से पाइथन में डेटा कैसे, डेटा क्लाइंट ने दिया है, HDFC बैंक ने दिया है. मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, मैं DCS के काम कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, पहली बार बैंकिंग डेटा पे काम कर रहा हूँ, मुझे डेटा समझना पड़ेगा. सेकंड थिंग विल बी डेटा एक्सप्लोरेशन.
अब मैंने एक्सप्लोर कर ला, मैंने कहानी समझ ली, अब मैं जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डेटा को ठीक करूंगा। तो आई क्लीन अप डेटा, आई विल प्रिपेयर डेटा, राइट। अब डेटा जब तैयार हो गया तो आई कैन एनालाइज डेटा, ठीक है, आई कैन विजुअलाइज डेटा, आई कैन create charts, reports on top of that, right? ये सारी चीजें हम पाइथन में सीख रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर कवरिंग इन पाइथन। ये पाइथन वाला फेज होगा। तो ऑलमोस्ट हम 1 सवा महीना पाइथन सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 से 1 to 1.25 months we are covering on पाइथन। इसमें क्या होगा, 6 असाइनमेंट्स करनी है हमें। ये सब असाइनमेंट्स जो हैं हर वीक हम एक मेजर टॉपिक कवर कर रहे हैं और उस वीक उसकी असाइनमेंट कवर कर रहे हैं। तो असाइनमेंट जो है दीज आर ऑल रियल वर्ल्ड स्टफ, जो हम छोटी छोटी चीजें रियलिटी में करते हैं। ये सारी चीजें आपने इस कोर्स में देखी होंगी, समझ रहे हो। तो ऑल दीज थिंग्स आर द थिंग्स दैट वी यूज इन डे टू डे बेसिस इन रियल वर्ल्ड। तो वो सारी चीजें हमने इन असाइनमेंट में डाली है। तो ये कोई बच्चों वाला कोर्स नहीं है कि चलो कुछ भी छोटे मोटे फंक्शन करा दिए और जब रियल वर्ल्ड में हमने देखा तो दुनिया ही कुछ और है। इट्स नॉट लाइक दैट, it's a replica of, it's highlights of what you are going to get in the interviews or in the real world, right? तो 6 assignments है, ये 6 assignment किसी ने कर ली तो they will be good with anything in the Python in terms of data science, right? तो ये हर वीक हम एक मेजर टॉपिक कवर कर रहे हैं, उसी वीक उसकी असाइनमेंट, टॉपिक असाइनमेंट, सो दैट हम ऐसा ना हो कि आगे आगे बढ़ते जाएं और पिछला सामान इकट्ठा होता जाए। तो वैसा नहीं हम कुछ कर रहे। एक वीक वो उसकी असाइनमेंट, टॉपिक असाइनमेंट, एंड वी आर रिकॉर्डिंग ऑल द वीडियोस। तो यू विल हैव, ये जो भी सेशन हम करेंगे सैटरडे संडे, वीकेंड कोर्स ही है ये, सैटरडे संडे यू विल गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ द सेम डे। यू कैन डाउनलोड दैट रिकॉर्डिंग एट योर एंड और यू कैन डू द थिंग्स एट योर ओन पेस। आपको असाइनमेंट सॉल्व करनी है, आपको सारी चीजें याद नहीं रही क्लास में क्या कर रहा था ये वो, ठीक है। तो यू विल हैव द रिकॉर्डिंग टू डू थिंग्स एट योर ओन पेस, राइट। तुम आप रिकॉर्डिंग दोबारा से देख के सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से रिकैप कर सकते हो अपने हिसाब से जब आपको टाइम मिले, राइट। तो विद इन दैट वीक यू हैव टू सबमिट दैट असाइनमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम चल रहे हैं ताकि हम जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसका हम प्रैक्टिकली साथ के साथ देखते जाएं, राइट। तो देयर विल बी 6 असाइनमेंट्स इन पाइथन, देन वी विल बी मूविंग टू स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब आपको डेटा के साथ खेलना आ गया। अब मैं कह रहा हूँ इसमें स्टैट्स के फंडे क्या यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैट्स कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने बोला एवरेज हाइट क्या है इंडिया में लोगों की, राइट। अब इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, मैं कैसे एवरेज हाइट चेक कर लूंगा, राइट। मैं हर बंदे के पास तो नहीं जा सकता। तो आई नीड सम स्टैटिस्टिकल मेजर्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स या स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम दैट कैन हेल्प मी कि मैं क्या कैसे ये चीज आइडेंटिफाई करूँ। आपके सामने ये क्वेश्चन है, इंडिया पॉपुलेशन ऑफ 130 करोड़। मैं जानना, अगर आप गूगल मारोगे तो यू विल फाइंड अ नंबर की एवरेज हाइट इतनी है या एवरेज वेट इतना है। मेरे पास तो कभी नहीं आए वो हाइट चेक करने, आपके पास भी आई एम श्योर नहीं आए होंगे। तो हाउ दे कंक्लूडेड कि ये एवरेज हाइट इतनी है? एनी गेसेस? They take sample size and then they perform some statistical राइट। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उस पर काम नहीं किया जा सकता। तो वी नीड टू हैव सम सैंपल काइंड ऑफ अ थिंग। अब सैंपल बायस भी हो सकता है, मैंने सारे लोग ऐसे उठा लिए। एंड आई गेस हम लोग साहिल सेंट्रल लिमिट थ्योरम से भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम सैंपल साइज ले लें तो उसमें हमारा बायस नहीं, we are not going, your answer is correct, but we are not going deep into technical stuff अभी के लिए। we are just trying to understand the application part, right? not the algorithm part. ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टैट्स वाली ऐसी टेक्निक्स होंगी that can make sure कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उठा ले उसमें से। मैं बायस सैंपल भी उठा सकता हूँ। मैंने मोस्टली ऐसे लोग उठा लिए, मैंने एक सैंपल उठा लिया जिसमें मेजॉरिटी ऑफ लोग कहाँ से है, नॉर्थ ईस्ट से, जहाँ पे एवरेज हाइट कम है, राइट। तो मेरी एवरेज हाइट क्या आएगी, कम आएगी। तो मैं बोलूंगा कि एवरेज हाइट इतनी है इंडिया में, तो वो नंबर करेक्ट नहीं होगा। तो हाउ कैन आई मेक श्योर कि जो नंबर मैं बोलने जा रहा हूँ थोड़े से लोगों का डेटा देख के तो पूरी पॉपुलेशन पे फिट बैठता है, राइट। हाउ कैन आई मेक श्योर दोज थिंग्स, राइट। हाउ कैन आई चूज अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल दैट कैन हेल्प मी टू डिसाइड 130 लोगों के बिहाफ पे थोड़े से लोगों का डेटा देख के कैसे बता दूं
कि यही चीज होनी चाहिए। तो इस तरीके की एप्लीकेशन हम स्टैट्स में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टैट्स सीख रहे हैं। थर्ड यहाँ पे स्टैट्स की थ्योरी होगी कि क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या टेस्ट होते हैं, प्री टेस्ट, टी टेस्ट, इस तरीके के हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तीसरा पार्ट आता है जो मेन पार्ट है इस कोर्स का, दैट इज मशीन लर्निंग। मार्केट में मशीन लर्निंग कोई नहीं सिखाता, जो भी सिखाता है वो एक आध प्रोजेक्ट बनाता है, थ्योरी वो करवा देता है। बस जो नेट पे प्रोजेक्ट पड़े होते हैं वो लाइनें चला के आपको 10 लाइन चला के दिखा देते हैं कि ये बन गया मॉडल। मॉडल ऐसे नहीं बनते, मॉडल बनाने में 6-6 महीने लग जाते हैं रियल वर्ल्ड में, राइट। मैंने जो पिछला मॉडल बनाया उसको 6 महीने लगे हैं अप्रूव होने में, फाइनल होने में, राइट। तो जो चीज़ हम 1 घंटे में बना रहे हैं वो 6 महीने कैसे लग सकते हैं, राइट, उसमें। तो इस कोर्स में हम वो सारी चीज़ें सीख रहे हैं कि डेटा में क्या इश्यूज हो सकते हैं। मॉडल नहीं सही बना, प्रोसेस सही था तो क्या करना होगा, मुझे लगा सही बन गया, क्लाइंट को पसंद नहीं आया, अब क्या, राइट। डेटा जो हमने लिया है वो इनकम्प्लीट है तो क्या करें, राइट। डेटा में बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज हैं, क्या करेंगे। तो हमने वेरिएबल लिया वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है बट उससे मॉडल अच्छा नहीं बन रहा, उससे प्रेडिक्शन अच्छे नहीं आ रहे, राइट। एक चीज जो 100 आनी चाहिए वो 70 आ रही है, ठीक है। व्हाट टू डू ओवर, ये चीजें कहीं इंटरनेट पे, कहीं वेब पे, कहीं किसी कोर्स में नहीं सिखाई जाती। वी आर फोकसिंग ऑन दीज थिंग जो इंटरव्यूअर सुनना चाहता है तुम्हारे से, ठीक है। नाउ आई टेक इंटरव्यूज, आई गिव इंटरव्यूज, सो आई नो what people expect from me and what I expect from people. तो उसी नजरिए से we are covering this course, everything from practical point of view. तो मैं आप लोगों को as an employee treat करूँगा, not as a student, right? We will believe कि we are doing an internship kind of a thing, or we believe कि we are doing something sitting in the office as colleagues, right? We are solving a real world problem, right? तो उसमें क्या क्या बोला जा सकता है, क्या क्या हो सकता है, all the possible scenarios we will be going through in these projects, right? So machine learning is the main core part जो लोगों को आता भी नहीं है। और मशीन लर्निंग ऐसा चीज है जिसमें ही सारा पैसा है। पाइथन, बहुत सारे लोग सोचते हैं डेटा साइंस इज ऑल अबाउट पाइथन या ये सब चीजें। पाइथन इज जस्ट अ लैंग्वेज, राइट, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। मैंने बोला कि मुझे बताओ डीमोनेटाइजेशन क्या है, आपने बोला मुझे इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, पंजाबी भी आती है, फ्रेंच भी आती है, बट मुझे डीमोनेटाइजेशन नहीं पता, राइट। तो आपकी लैंग्वेजेस का कोई फायदा है नहीं। तो पाइथन, सैस, आर, ये सब लैंग्वेजेस हैं। तो लैंग्वेज का कोई फायदा नहीं है जब तक तुम्हें कंटेंट नहीं पता कि करना क्या है, कैसे करना है। तो मशीन लर्निंग इज योर नॉलेज, जो काम हमें करना है। पाइथन इज जस्ट अ लैंग्वेज टू राइट दैट स्टफ, ठीक है। तो पाइथन इज नॉट डेटा साइंस, ठीक है। पाइथन आजकल कॉलेज के बच्चे भी सिखाते हैं। मशीन लर्निंग इज प्रैक्टिकल स्टफ, तो किसी वीडियो, किसी कोर्स से नहीं सीखा जाता। तो आवर फोकस इज मशीन लर्निंग सो दैट पीपल कैन गेट जॉब, जो नॉलेज किसी के पास नहीं है मार्केट में, राइट। बहुत सारे लोग कोर्स करते हैं बट वो सिर्फ भाई 10 चीजें पता होंगी, 4 चीजें नहीं पता होंगी, ठीक है। तो मेन फोकस विल बी मशीन लर्निंग। यहाँ पे हम 10 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, 5 क्लास में, 5 in the class, end-to-end projects in the class. Data will be given to you, everything will be given to you, ठीक है। 5 प्रोजेक्ट तुम्हारे असाइनमेंट होंगे। एक प्रोजेक्ट बनाया, उसी टाइप का एक प्रोजेक्ट विल बी गिवन एज असाइनमेंट, ठीक है। ताकि आप एंड टू एंड जब खुद से बनाओगे तो आपको पता लगेगा क्या इशू आए, कहाँ फंसे। वही चीज रियल वर्ल्ड में करनी है, राइट। तो अगर हमने 1-2 मॉडल भी बना लिए इस कोर्स में, तो वी नो कि कैसे काम होता है, व्हाट मॉडल इज, राइट। सामने वाला बंदा क्या पूछ सकता है, मशीन लर्निंग क्या है, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, एवरीथिंग यू विल बी अवेयर ऑफ, राइट। चौथी चीज है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल इज अ वेरी इजी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कीवर्ड की एक लैंग्वेज है। जैसे मैंने बोला कि ऐसे लोगों का डेटा उठा दो जो गुड़गांव में रहते हैं और जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। तो एक क्वेरी बनी है, सेलेक्ट पीपल फ्रॉम सिटी इक्वल टू गुड़गांव एंड सैलरी ग्रेटर देन। तो इंग्लिश के कीवर्ड्स को हमने उसमें स्टेटमेंट में डाला हुआ है। तो दिस इज अ वेरी इजी, इसकी हमने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है। तो वी विल हैव रिकॉर्डेड सेशंस ओनली। तो कोई डाउट होगा तो उसके लिए हम सेशन कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इसमें कोई किसी को डाउट होगा। तो वी विल बी हैविंग वीडियो सेशन ओनली। एंड फिफ्थ वन इज another very new thing in the market, NLP, which is called natural language processing, natural language
processing. How can we make machine learn human language? English कैसे सिखा दूं उसको, हिंदी कैसे सिखा दूं मैं मशीन को, मशीन कैसे बोल देगी ये क्रिकेट का आर्टिकल है और ये आर्टिकल कोरोना वायरस पे है, ठीक है। इस पे हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। These are 5 modules that we are covering, 6 assignment, 10 projects. अगर किसी ने ये 6 assignment और ये project बना लिए तो I can take your guarantee कि you can crack any interview and you know all those things that you should know, ठीक है। तो यही चीजें, this is all about the curriculum, this is the things that we are covering. मशीन लर्निंग में हमारे 10 प्रोजेक्ट होंगे, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे, अलग अलग टेक्निक्स पे। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स विल बी, जो अभी हमने देखा, चर्न मॉडल, राइट, कि कौन से कस्टमर छोड़ने वाले हैं। अब वो कस्टमर टेलीकॉम कस्टमर भी हो सकता है, वो एक एम्प्लॉय भी हो सकता है किसी कंपनी का, वो एक रिटेल कस्टमर का भी हो सकता है। वो रिलायंस फ्रेश में रेगुलर जाता था, अब मैं एक और कॉम्पिटिटर स्टोर खुल गया, अब मैं नहीं जाता वहां पे, राइट, तो मैं चर्न हो गया हूँ। मुझे कैसे वो रिटेन कर सकते हैं वापस, मुझे कैसे वो वापस लैप्स हो गया वो एक तरीके से, मुझे कैसे वो वापस गेन कर सकते हैं, हाउ कैन आई बिकम देयर कस्टमर अगेन, राइट। इस तरीके की स्ट्रेटजी जो रियल वर्ल्ड में, हाउ मच SQL videos, I didn't understand your question. सर ये SQL के कितने वीडियोज होंगे? SQL एंड टू एंड होगा, जो भी चीजें हम पाइथन से कर सकते हैं SQL से कैसे करना है वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो मतलब ज्यादा नहीं होगा, आई थिंक 2 वीकेंड का काम होगा जिसमें हम विल कवर एवरीथिंग, ठीक है। तो 4 वीडियोस होंगे, मे बी 4 वीडियोस में वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग की जो चीजें हमें चाहिए। So these will be pre-recorded videos or it will be taught by you? The SQL to SQL वाला पार्ट जो है ना वही प्री रिकॉर्डेड होगा, बाकी सारी चीजें क्लास में हम कर रहे हैं, बाकी सारे लाइव सेशन होंगे और उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। जो SQL वाला पार्ट है ये हम क्लास में कवर नहीं कर रहे, बिकॉज वी बिलीव कि अगर आपने पाइथन, स्टैट्स, मशीन लर्निंग कर लिया है और ये समझ आ गया तो SQL जो है वो खुद से पिक कर सकते हो, उस पर हमें जरूरत नहीं है। दिस कैन बी डन एट अ सेल्फ पेस, और इसके लिए हमने ऑलरेडी सेशन रिकॉर्ड करके रखे हैं। रिकॉर्डिंग पर मेरे को कोई फर्क थोड़ी है, ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, यही सुनना है आपने बाद में, राइट। तो मैं प्रेजेंट हूँ या वो मेरी आवाज है, तो इट्स सेम थिंग, राइट। इफ वील हैव डाउट्स, ये सेशन कोई नेट वाले सेशन नहीं है रिकॉर्डेड, मेरे रिकॉर्डेड सेशन होंगे, ऐसा है, राइट, जो हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। नाउ वी आर नॉट रिपीटिंग दोज इन फर्दर बैचेस बिकॉज वी बिलीव कि इससे तो ऑब्जेक्टिव है वो हिल जाता है, कोर्स लंबा खिंच जाता है और समहाउ लोग फिर वो हो जाते हैं, मतलब उतना मोमेंटम बचता नहीं है, राइट। तो ये सेल्फ पेस पे करना ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू उसकी क्लासेस रखना। दिस इज व्हाट आवर ऑब्जर्वेशन इज फ्रॉम लास्ट 40 बैचेस, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है रिलेटेड टू SQL। तो जैसे मेरा जो लास्ट फॉर्म था उसमें हम लोग बहुत बेसिक SQL जैसे यूज करते थे। अगर फेच करनी है हमें कोई रिपोर्ट जो मेरे SQL क्वेरी से बनी हुई है या व्हाटएवर कोई डेटाबेस में, बट मुझे इसका रियल टाइम वो जानना है यूज केस। लेट्स सपोज अगर हम सिर्फ पाइथन पे ही ये सारे ऑब्वियसली जो आपके 6 प्रोजेक्ट्स हैं वो कर रहे हैं, राइट। तो अगर इन फ्यूचर SQL का और पाइथन का कहाँ यूज होता है, कहीं पे ओवरलैप करता है या कभी कोई ऐसी नीड पड़ेगी हमें जहाँ पे हमें भी हैव टू हेलो म्यूट पे हो जाओ यार, म्यूट पे हो जाओ आनंद। तो मेरा क्वेश्चन साहिल बस ये है कि अगर 1% SQL और पाइथन क्या है? पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू तुम कुछ भी कर सकते हो, डेटा एनालिसिस, डेटा प्रेडिक्शन, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन। बट SQL जो है वो डेटा एनालिसिस की लैंग्वेज है। जो पाइथन में हम डेटा एनालिसिस वाला काम कर रहे हैं ना, ये जो सेक्शन है हमारा, ये सारा काम हम माइनिंग टाइप बेसिकली ये सारा काम हम SQL से कर सकते हैं। बट ये जो काम है मशीन लर्निंग, स्टैट्स, ये हम SQL से नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली, बट जब अगर मुझे पाइथन आता है तो मैं अगर नहीं, मैं क्यों करूं, व्हाई शुड आई लर्न इट? तो अगर हम उसे नहीं रखना चाहें मे बी इन फ्यूचर, नहीं, ये इसलिए है कि जो SQL है
बहुत सारी जगह, बहुत सारी कंपनीज में डेटा जो है वो किसी डेटाबेस में पड़ा होगा, राइट? हाँ, फेच करने में ठीक है, काम तो आता है। फैच करने के लिए तुम्हें SQL एक ऐसा टूल है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो डेटा बेसिस के ऊपर चलता है। पाइथन डेटा बेसिस के ऊपर नहीं चलता। पाइथन जो बना ओके, हुआ डेटा है ना उसके ऊपर चलेगा। ठीक ये है, वही एग्जांपल हो गया जैसे मैंने अभी लास्ट फॉर्म वाला बताया, वहां पे हम राइट बस राइट सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते थे टू गेट द डेटा। राइट। तो डेटा बेस पे अगर कनेक्टिविटी करके डेटा उठाना है तो वहाँ SQL चलेगा, वहाँ पाइथन नहीं चलेगा। ठीक है। एक तो वहाँ पे क्वेश्चन मेरा भी है, कैन आई आस्क? यस यस गो अहेड। हम एसक्यूएल की जो सिलेक्ट क्वेरीज डालेंगे वो हम कौन से टूल पे करेंगे? देखो SQL जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टूल है। SQL जो है माई SQL पे भी चलता है, SQL सर्वर पे भी चलता है, Oracle पे भी चलता है। हम कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न SQL क्वेरीज, राइट? क्वेरी कैसे लिखनी है डेटा के ऊपर, ये ऑब्जेक्टिव है। हम जनरली माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर यूज करेंगे। तो टूल्स आप प्रोवाइड कराओगे हमें? हाँ, इंस्टॉल कर देंगे वो तो डाउनलोड करके हम इंस्टॉल कर ठीक है, देंगे आपके लैपटॉप। ओके ओके, So all the tools, all the software will be given to you from us. ये सारे ओपन सोर्सेज ही हैं, और वो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर वो कैसे इंस्टॉल करना है वो भी बता देंगे। तो विनय सर will help you in installing and understanding all those things. तो पाइथन इंस्टॉल करना खुद से भी कर सकते हो, और you can take our help as well, वो हम बता देंगे। So everything will be available to you. Sir, we did cover any tool like Tableau and Power BI in this course? Tableau और Power BI का हमारा डिफरेंट कोर्स है। ठीक है, देयर इज अनदर कोर्स। ये कोर्स है जो है वो डेटा साइंस का कोर्स है। Tableau प्लस SQL। ओके, बट इसमें हम ये वो कोर्स अलग से लेना पड़ेगा? हाँ, वो कोर्स अलग है। वो आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट कोर्स। वो अलग इंस्ट्रक्टर है जो Tableau कराते हैं। ठीक है, तो अगर आपको Tableau इसमें एम्बेड कर सकते हो, ये कोर्स प्लस Tableau ये करना चाहो तो वी कैन वर्क अराउंड दैट। बट वो किस में होगा सर? लाइक जो तो हमारा ETL प्रोसेस होगा, तो जो डेटा विजुअलाइजेशन होगा वो तो कोई टूल में होगा ना, पावर BI या टेबलू या क्लिक व्यू? Tableau मैं बता तो रहा हूँ, Tableau will be our visualization tool. That's a different course. जहाँ पे कर रहे हैं वो Python के थ्रू कर रहे हैं। This is Python. Sorry sir, your voice is not audible. Your voice is also not audible. तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो visualization करते हैं हम, that Hello. Sahil, your voice is cracking in between. अब आ रही है आवाज? Is it better now? Yes, Yeah, Sahil. it's better. हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ Tableau एक अलग कोर्स भी है। If you want to do Tableau तो हम इस कोर्स के साथ Tableau ऐड कर सकते हैं, but that is being taught by some different instructor. मैं नहीं Tableau की क्लास लेता हूँ, मैं डेटा साइंस वाला काम कराता हूँ, ये वाला पार्ट करते हैं, राइट? तो अगर किसी को Tableau भी करना होगा या सिर्फ Tableau करना है तो there are different options to work around with that thing, right? वैसा। बट सर जो डेटा पाइथन में या मशीन में करेंगे, जो पूरा पार्ट्स जो इसका आपने बताया, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, बेसिकली मतलब ETL प्रोसेस, उससे को हम कनेक्ट करेंगे किसी टूल से, या मतलब ये डेटाबेस होगा पूरा, इसको क्लीनिंग वगैरह करके उसको कनेक्ट पाइथन जो है वो डेटाबेस के साथ नहीं, फाइल सिस्टम पे चलेगा। तो हम डेटाबेस से डेटा लोड करेंगे, उसको CSV, एक्सेल या टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, उस टेक्स्ट फाइल को पाइथन में लोड करके लाएंगे, उस फाइल पे पाइथन चलेगा। पाइथन जो है फाइल सिस्टम पे चलेगा, ना कि डेटाबेस के साथ। ओके, कंपनी मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म देती है सपोज। हाँ, तो कंपनी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसे किसी का डेटा हाइव में पड़ा है, हडूप में पड़ा है, तो वहां पे सब पे SQL से हम फाइल करते हैं। SQL से डेटाबेस तो बहुत बड़ा है, राइट? हम पाइथन डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर लेते कि ये लो पाइथन से पुल कर लो यूनिवर्स में से कुछ भी। तो हम SQL के थ्रू डेटा क्लीन करके, डेटा प्रोसेस करके जो अपने काम का डेटा है वो बनाएंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे एक टेक्स्ट या CSV एक्सेल फाइल में, वो देंगे पाइथन को कि फाइल रीड कर ले। वो पाइथन फाइल रीड करके अब जो मर्जी हमें करके दे। मींस लाइक ओरेकल से या SAP से किसी से भी निकाल के हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक्सेल में, और एक्सेल से हम एक्सेल की फॉर्म में डेटा निकाल के पाइथन को देंगे, ऐसा है।
मींस वहाँ ओरेकल में वो चेंज करेगा तो फिर वो अपने मेन जो डेटाबेस हम काम कर रहे हैं वहाँ पे चेंज होगा। नहीं, आप ओरेकल से तो डेटा उठाओगे जो मुझे चाहिए। ओरेकल में 50 लाख लोगों का डेटा पड़ा है, मैं कह रहा हूँ एक सैंपल उठा लो, 50 लाख लोगों पे काम नहीं कर सकते। तो मैंने सीक्वल लिखा, सीक्वल से मैंने 5 लाख लोगों का एक सैंपल उठा लिया, उससे एक CSV टेक्स्ट एक्सेल कोई फाइल बना ली, वो फाइल पाइथन को दे दी। अब पाइथन वो फाइल रीड करेगा जहाँ पे भी रखी है हमने, ऐसे है। जैसे 50 लाख ले लिया, फिर वो कस्टमर तो बढ़ते जाएंगे जो भी है, तो वो जो वहाँ पे अटैच हो रहे हैं, अटैच नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, अटैचमेंट नहीं हुई, दो टूल जोड़े नहीं है हमने आपस में, वन टाइम डेटा लोड करके लेके आया है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मुझे कस्टमर्स के काम करना है, मैंने डेटा रिफ्रेश नहीं करना। दिस इज नॉट विजुअलाइजेशन की डेटा बैकएंड पे रिफ्रेश हो रहा है, मैंने टूल जोड़ दिया और उसको रिफ्रेश करते रहो, ये सब काम नहीं करते। मॉडल एक स्टैटिक डेटा पे बनता है, पिछले 3 साल के कस्टमर्स का डेटा उठा लो, दैट्स इट। तो मैंने आज उठा लिया, तो कल जो नए कस्टमर आए वो मुझे चाहिए नहीं एनालिसिस के लिए, ऐसा है, राइट। एक स्नैपशॉट ऑफ डेटा उठा के हम डेटा साइंस में काम करते हैं, ना कि करंट डेटा पे। लास्ट डाटा जो होता है हमारा, लाइक जो डेटा या मशीन लर्निंग जो भी हम सीखेंगे उसका यूज हम मतलब जैसे कोई भी टूल हो सकता है। वॉइस इज ब्रेकिंग अ लॉट, मैं क्लियर नहीं आ रहा आवाज। मेरी आ रही है क्लियर? यस। Your voice is not clear. You can, after this class we can connect again, right? You can call me and we can discuss in detail as well, right? ठीक है? ठीक है? So this was all about पाइथन सीखा। क्या कह रहे हो? हम जैसे हमने पाइथन सीखा पूरा, हाँ जी, मशीन लर्निंग सीखा, तो हम डेटा एक्सपोर्ट करवा के मान लो या कोई भी टूल हो कंपनी का जो भी है, ये पावर BI ये जो भी है, तो पाइथन का यूज वहां कर सकते हैं हम पूरा। कोई भी डेटा जो बना हुआ है उसको हम पाइथन से अटैच कर सकते हैं, उसको हम टैब्ल्यू से अटैच कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। आपने पाइथन से कुछ प्रोसेस करके बना लिया है, नाउ यू वांट टू कनेक्ट दैट टू टैब्ल्यू और उस पे विजुअलाइजेशन करके दिखाना चाहते हो, वी कैन डू दैट, राइट। पाइथन करेंगे कौन सा टूल है? The voice is not audible at all. फिर आप मुझे कॉल कर लेना इसके बाद, राइट, वी कैन कनेक्ट अगेन, ठीक है। ये 5 मॉड्यूल हम कवर कर रहे हैं, देन आफ्टर दैट अगर किसी को टैब्ल्यू करना है तो यू कैन लेट अस नो। टैब्ल्यू का अलग इंस्ट्रक्टर है, वी कैन ऐड दैट कोर्स इनटू दिस थिंग एज वेल, ठीक है। तो ये मोटा मोटा यही कोर्स है हमारा पूरा। इट्स अ 3.5 months course over the weekends, Saturday, Sunday, 2.5 hours per day. और हर वीक आपसे एक्सपेक्टेशन है 5 घंटे की पढ़ाई की, 1 घंटा पर डे, ठीक है, टू सॉल्व द असाइनमेंट, ताकि हम असाइनमेंट कर सकें। तो आपको सेल्फ स्टडी की भी जरूरत नहीं है, जो भी मटेरियल हम दे रहे हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो आपको वो वीडियो दोबारा देख के उसके हिसाब से असाइनमेंट करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इट्स तो इस तरीके का कोर्स है, अराउंड 7 hours पर वीक और अराउंड 120 hours का कोर्स है। सो वेयर वी आर कवरिंग 6 assignments, 10 projects, 10 ML projects। सारे सॉफ्टवेयर्स, PDFs, data, assignments, everything will be given to you, ठीक है। Videos, recorded videos, right? So you will get all these things in this course, right?
एंड आफ्टर दैट मेन पार्ट जो आता है वो प्लेसमेंट प्रिपरेशन का, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं regarding placement, so we have tie up with few consultants who hire for different companies in NCR, right? For example, EXL के लिए जो hire करते हैं consultant, we have tie up with them, right? Now they put their requirement to us कि इस तरीके का बंदा चाहिए, Tableau plus Python, ये दो आने चाहिए। So we customize CVs of our candidates and उस हिसाब से हम उनको float करते हैं। Plus if you'll ask me, I have a big circle in NCR now if you'll ask me कि यार इस कंपनी में कोई ओपनिंग है निकली हुई, so if you can refer me, so I can make sure I can push your CV to someone who can refer you over there, right? So industry links जो हैं उनके थ्रू हम प्लेसमेंट करवाते हैं या फिर जो कंसल्टेंट्स है उसके थ्रू। We keep on posting lot of jobs during the course as well, after the course as well, so you have to apply at those things as well. We will have mock interviews, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है। We will share, हमने 300 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक बना रखा है, तो 90% क्वेश्चन हर इंटरव्यू में वही होंगे, उसी के आसपास। अगर आपको क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट की तो 90% क्वेश्चन उन्हीं के आसपास घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, राइट? तो क्वेश्चन बैंक will be given to you, so there is everything that, मतलब आपके पास हर चीज है अवेलेबल। जो भी डर्टी वर्क है वो हमने ऑलरेडी कर रखा है, आपका काम सिर्फ पढ़ना ही है और कुछ नहीं है, राइट? एवरीथिंग इज देयर, राइट? Interview questions, mock interviews, videos, data, everything is there, right? You just have to focus for 3.5 months so that we can cover everything that is required, ठीक है? यही मेन चीजें that makes this course job ready। और इसके अलावा हाँ, we will convert your CV in such a way, हम आपका CV मोल्ड कर देते हैं, पिछला 1, 1.5, 2 साल हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, कि आप डेटा साइंस पे काम कर रहे हो, तो जो भी काम कर रहे हो उसको भूल जाओ, ठीक है। पिछले 1, 1.5 साल वाला हम सारा एक्सपीरियंस जो इस कोर्स में हम प्रोजेक्ट करेंगे, जो इस कोर्स में हम सीखेंगे, एवरीथिंग फ्रॉम दैट कोर्स विल बी ऑन योर CV। तो ये सारी चीजें हम आपके CV में डालेंगे, सो दैट उसके मार्केट वैल्यू भी हो उस CV की, वो शॉर्ट लिस्ट भी हो, उसके हिसाब से आपको मार्केट के हिसाब से डेटा साइंस में 2 साल पे कितना पैसा मिलता होगा, उस हिसाब से मार्केट करेक्शन भी हो जाए, लॉन्ग टर्म में भी फायदा हो, और एंड आप ऐसा ना बोलो कि मैं एक कोर्स करके आया हूँ या आई हूँ, राइट? तो आपके लिए वो हो जाएगा कि आप डेटा साइंस में ऑलरेडी काम करते हो और इस कोर्स में 4-5 साल वर्क एक्स का इंटरव्यू निकाल सकते हो, राइट? बट वी विल ओनली क्लेम 1.5 year 2 years, राइट? तो इस तरीके का एक कोर्स। आज सुबह मैंने उस ग्रुप में एक पोस्ट डाला था प्लेसमेंट्स का, राइट? वो 2 लोग प्लेस हुए हैं, दोनों को मैंने अपनी एक्स कंपनी में प्लेस करवाया है बाय रेफरेंस, राइट? 2 लोग जो आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, वो एक स्क्रीनशॉट डाला था, राइट? बोथ हैव बीन प्लेस्ड इन USG एंड थ्रू रेफरेंसेस ओनली, राइट? दिस इज हाउ वी हेल्प पीपल हु मतलब जो एफर्ट मारते हैं, मैं उन्हीं की हेल्प करते हैं हम लोग जो एफर्ट मारते हैं, राइट? तो देयर इज नो फेक प्रॉमिसेस कि हाँ आप कोर्स कर लो उसके बाद आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कोई ड्रैग ड्रॉप करने वाला कोर्स नहीं है कि हाँ कोर्स करा उसके बाद हमारी नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। इट रिक्वायर्स एफर्ट, और अगर आप एफर्ट लगाओ हम आप पे डबल एफर्ट लगाएंगे, राइट? अगर उनका नहीं भी प्लेसमेंट होता तो मैंने उनको कोई गारंटी नहीं दे रखी, बट मुझे पता कि उन्होंने एफर्ट मारा है तो मैंने उनके लिए डबल एफर्ट मारा है। मैं उस कंपनी में हूँ नहीं, मैंने फिर भी आई हैव लेफ्ट USG, तो मैंने फिर भी जुगाड़ से जैसे भी बोल के इंटरव्यू कंडक्ट कराए, इंटरव्यू के बाद फिर से पुश करके जिसने इंटरव्यू लिया कि अपना ही बंदा देख लो ना, ये वो करके, नाउ दे बोथ आर, वो केस ऐसे है उसमें से एक बंदा है जो who was working as in BPO, Infosys BPO, ठीक है? 1.5 साल का गैप था, उसने जॉब छोड़ दी थी कि डेटा साइंस में जाऊंगा, ठीक है, नाइट शिफ्ट से हटना है, ठीक है? तो 1.5 साल जॉब नहीं लगी, he came to our institute for SAS का मार्केट जो वो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, तो हमने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट Tableau, Python ये सब पढ़ाया। नाउ उसका पैकेज था समथिंग अराउंड 4, नाउ ही इज गेटिंग 8, तो ऑलमोस्ट 90% हाइक मिला है 1.5 साल के गैप के बाद। सो दिस वाज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर अस कि हम किसी का भी करवा सकते हैं इफ पीपल हैव इन्वेस्टेड टाइम। और अगर लोगों को, तो मुझे गारंटी थी कि अगर इनको इंटरव्यू मिले तो ये दे कैन क्रैक, तो इसलिए हमने एफर्ट मारे और हो भी गया। एंड और वो जो दूसरी लड़की थी जिसका वो उसमें ग्रुप में डाला है, शी वाज इन इंडिया बुल्स ने मास फायरिंग करी थी जनवरी में,
तो जनवरी अब क्या है, अगस्त, राइट? तो 7-8 महीने हो चुके हैं। शी वाज आल्सो जॉबलेस, ठीक है। तो ऐसे लोगों का कोरोना के टाइम में हमने कराया। तो जो लोग आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोग आर ऑलरेडी वर्किंग होंगे, राइट? तो आप लोगों के लिए सिर्फ इतना मुश्किल नहीं है। दीज वर द वर्स्ट केसेस। तो दीज वर टू केसेस जहाँ पे हमें पता लगा कि मतलब दिस वाज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर अस कि द कंटेंट दैट वी आर कवरिंग have a market value and जो इस तरीके के केस हैं वो भी हम कन्वर्ट करवा सकते हैं, right? So Sahil, I have a question, like, is this course suitable for like experienced people, 10 plus years of experience? it is suitable for everyone क्योंकि data science एक ऐसी चीज है जो हर कंपनी में will not be able to show our previous experience that much. तो उसके लिए क्या आता है, वो आता है, अब केस आता है कि आप पोर्ट्रे कैसे करेंगे, राइट? मे बी आपको मैनेजरियल जॉब पे जाना है, ठीक है, आप मैनेजरियल रोल पे ऑलरेडी हो किसी और डिपार्टमेंट में, एंड नाउ यू वांट टू मूव टू अ मैनेजरियल रोल ओनली विद इन डेटा साइंस डिपार्टमेंट। तो आपके लिए जो आपको नॉलेज होनी चाहिए वो आपको नॉलेज इस कोर्स से होगी, सो दैट आप उसी लेवल पे शिफ्ट मार सको, राइट? तो ऐसा होगा, आपको स्क्रैच से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जिस लेवल पे हो, आपको अगर डिपार्टमेंट चेंज करना है कि अब मैं आईटी से इसमें जाना जा रही हूँ, तो मैं उसके लिए इंटरव्यू, अगर मुझे वो इंटरनल चीजें हैं वो हम मतलब आई कैन नॉट कमिट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि वो कैसे कर सकते हैं, बट उसके लिए यही है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में इंटरनल मूवमेंट अवेलेबल है, राइट? नाउ यू कैन अप्लाई टू लॉट ऑफ जॉब्स जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको डेटा साइंस वाली एक जॉब मिली उसी लेवल पे जिसको आप अप्लाई कर सकते हो इंटरनली, ठीक है? तो उस जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी, आपको टेक्निकल नॉलेज उस चीज की होगी कि आप यू कैन क्रैक दैट इंटरव्यू। तो उस स्किल पे आपको जो चीजें चाहिए होंगी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यू विल हैव एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, राइट? अब उसको हम पोर्ट्रे कैसे करते हैं, कंपनी उसको कैसे लेती है, वो एडिशनल चीजें हैं। जॉब मिलना सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड नहीं करता ना, राइट? वो हमारे पे भी डिपेंड करता है, सामने वाली पार्टी पे भी डिपेंड करता है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, राइट, behind that thing, but the main thing is कि हमें चीजें आती हैं या नहीं आती हैं, अगर हमें इंटरव्यू मिले तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो मेन चीज है। तो यहाँ आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर यू आर टेक्निकली दैट साउंड कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो इन टर्म्स ऑफ जैसे ये कि आपके जॉब छूट गई है या आपका गैप है या आप किसी और फील्ड से हो, तो वी कैन, अगर हमें ये फैसिलिटी मिल जाए कि यू कैन अप्लाई फॉर दैट जॉब, तो हम क्रैक कर सके वो इंटरव्यू, राइट? अब 10 साल वाला एक्सपीरियंस कैसे शोकेस करना है वो डिफरेंट क्वेश्चन है, राइट? दैट वी कैन सेपरेटली टॉक एंड डिस्कस कि क्या क्या केस हो सकता है आपके केस में। ऐसे भी सिनेरियोज रहे हैं हमारे पास इन द पास्ट, तो 10-10 साल वाले लोगों ने सेम रोल पे अपने इंटरनल मूवमेंट्स करी हैं डेटा साइंस में फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। तो ऐसी केस स्टडीज वी हैव, तो वी कैन टॉक सेपरेटली ऑन दैट कि कैसे शोकेस कर सकते हैं, कितना एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो कई जगह वो फिट हो जाएगा, कई जगह वो मे बी फिट ना हो, बट यू हैव नथिंग टू लूज। मेन थिंग ये है, यू हैव थिंग्स टू गेन ओनली, राइट? आपकी जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो तो आपके पास है ही है। इस कोर्स के बाद आपके पास चीजें बेटर करने का ही मौका है, नीचे नहीं आ सकते, राइट? डेटा एक ऐसी चीज है जो हर कंपनी के पास है, डेटा साइंस हर कंपनी करती है। सो योर स्कोप इज to move up the ladder only, right? There is no way you can go down, right? So you will not be losing anything, but कई जगह वो fit हो जाएंगी, कई नहीं fit होंगी, but वही है, we just have to try because we believe we are technically sound. तो आज नहीं तो कल एक कंपनी नहीं तो दूसरी, someone will give us an opportunity. This is what my experience is. Okay, thanks, sir. तो वही है, CV हम convert कर देंगे in such a way that आपका experience जो है वो count हो। So this was all about the entire curriculum and the entire course, किस तरीके से हम cover कर रहे हैं, क्या cover कर रहे हैं, projects हैं, तो अलग अलग तरह के projects होंगे, अलग अलग टेक्निक पे। मुझे एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हाँ जी, वो तो फिर उसको एक्सपीरियंस लेटर वगैरह देखेंगे ना दूसरी कंपनी में अगर सिलेक्ट हो जाते हैं। आप जॉब करते हो तो एक्सपीरियंस लेटर तो होगा ही आपके पास, बट वो डिफरेंट होगा ना, डेटा साइंस का तो नहीं होगा। जो एक्सपीरियंस लेटर होता है, एक मिनट, जो एक्सपीरियंस लेटर होता है वहां पे ये नहीं लिखा होता कि आप काम क्या करते थे। एक्सपीरियंस लेटर पे लिखते हैं
you were employee of this company from this period to this period, that's it, right? आप वहाँ पे एक्सेल चलाते थे, आप वहाँ पे गप्पे मारते थे, आप वहाँ पे डेटा साइंस करते थे, ये कहीं नहीं लिखा होता। जो भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या जो भी होती है वो चेक करता है ये बंदा, इस बंदे ने क्लेम करा है, इसने जनवरी से लेकर दिसंबर तक काम किया है या नहीं, इस नाम का कोई बंदा है या नहीं, राइट? बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला थर्ड पार्टी वाले लोग हैं। रैंडम एक गरीब सा आदमी आता है, वो पूछता है आके कि ये यहाँ पे काम करता था या नहीं, दैट्स इट। उनको कोई देना नहीं कि डेटा साइंस क्या है, आईटी क्या है, आप क्या काम करते हो, काम क्या करते हो, ये कहीं पे पिक्चर में नहीं आता, राइट? समझ रहे हो? काम क्या करते हो ये कहीं पे पिक्चर नहीं आता। आप काम करते थे, इस पीरियड के दौरान करते थे, इस कंपनी में करते थे, दैट इज योर एक्सपीरियंस, राइट? कई लोगों के पास प्रोजेक्ट ही नहीं है तो कंपनी ये थोड़ी बोलती है इसके पास प्रोजेक्ट ही नहीं था, ये काम नहीं करता था, ऐसा नहीं होता। एक्सपीरियंस या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज checking that you are not taking in terms of your number of years of experience, your company, your dates, that's it. आपका सीवी बोलेगा उसकी जगह कि आपने काम किया है। सीवी में इंटरव्यू आप क्रैक करोगे, इंटरव्यू में जवाब दोगे, दैट इज अ प्रूफ कि हाँ आपको आती हैं चीजें। एक्सपीरियंस लेटर कोई नहीं देख रहा है, एचआर कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं पढ़ता है। एक्सपीरियंस लेटर इज द डॉक्यूमेंट दैट यू सबमिट, दैट्स इट, ठीक है? नोबडी विल चेक योर experience letter, right? There is no term like experience letter. Those are records only that they keep with themselves as a part of a record only, right? Now sir, open yeah, 15 minutes after, ask as many questions as you want. Yes, go ahead. सर ये जो मशीन लर्निंग था, एक्चुअली आई हैव नो आइडिया, लाइक आपने बोला था कि जो प्रेडिक्शन मेनली जो होता है वो मशीन लर्निंग में सीखेंगे हम लोग, राइट? प्रेडिक्शन जैसे मैं बैंक हूँ, मैं लोगों को लोन देता हूँ, राइट? अब मैं देखना चाहता हूँ कि कौन बंदा, और बहुत सारे लोग डिफॉल्टर निकलते हैं, राइट? अब हर साल मुझे 50 करोड़ का नुकसान होता है डिफॉल्टर्स के कारण। अब इस साल भी मैंने लोन देना है, तो बैंक क्या ऐसा लोन देना तो बंद नहीं कर देगा, या डिफॉल्टर डिफॉल्ट करना तो बंद नहीं कर देंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस साल भी मुझे 100 लोगों को फॉर एग्जांपल लोन देता हूँ मैं हर साल, इस साल भी हमें 100 लोन इशू करने हैं, बट हर साल मैं क्या देखता हूँ, मैं अच्छे लोगों को लोन देता हूँ, क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होता है, सैलरी भी अच्छी होती है, फिर भी डिफॉल्ट 50 करोड़ का नुकसान होता है। इस बार मैं क्या करूंगा, हिस्टोरिक डेटा से लर्न करूंगा, और अब जो लोग लोन लेने आए हैं मेरे पास, ठीक है, मैं उन पे चेक करूंगा कि इनमें से कौन से लोग हैं, 100 लोग लोन लेने आए हैं मेरे पास, 100 एप्लीकेशन आए, इनमें से कौन से एप्लीकेशन हैं जो हिस्टोरिक डिफॉल्टर जैसे दिख रहे हैं, इनमें से किस बंदे का डेटा उन लोगों के जैसा दिख रहा है जिसने हिस्ट्री में डिफॉल्ट किया है, राइट? मेरे पास कस्टमर्स की, वो मेरे कस्टमर है, बैंक के कस्टमर्स है, राइट? तो मेरे पास उन्होंने पिछले 3 महीने में कितना क्रेडिट किया, डेबिट किया, सारी इंफॉर्मेशन होगी, प्रॉपर्टी है या लोन। तो मशीन क्या करेगी, लर्न करेगी कि जो डिफॉल्टर रहे हैं हिस्ट्री में 3 साल में, 30 लोग डिफॉल्टर रहे, 70 लोग डिफॉल्टर नहीं रहे, ऐसा इमेजिन कर लो। तो 70 लोगों की क्या प्रोफाइल है, उनकी एज क्या है, उनकी सैलरी क्या रहती है, उनके पास प्रॉपर्टीज होती है, उनके पास मल्टीपल लोन्स होते हैं, और जो 30 लोगों ने डिफॉल्ट किया वो क्या डिफॉल्ट करने से 6 महीने 3 महीने पहले बहुत ज्यादा क्रेडिट डेबिट तो नहीं करते हैं, क्या उनके पास प्रॉपर्टीज हैं, क्या एज ग्रुप है, आर दे मैरिड और नो, ऐसे करके बहुत सारा डेटा। अब मशीन ने 2 पिक्चर बनाई दिमाग में कि डिफॉल्टर ऐसे दिखते हैं और नॉन डिफॉल्टर ऐसे दिखते हैं। आप गए लोन लेने, अब वो क्या करेगा, मैच करेगा आपका डेटा कि आप डिफॉल्टर जैसे दिखते हो या नॉन डिफॉल्टर जैसे दिखते हो, और कितने % दिखते हो, इस हिसाब से आपका एक स्कोर बताएगा कि यू हैव 80% चांसेस टू बी अ डिफॉल्टर। बैंक बोलेगा बहुत रिस्की कस्टमर, इसको लोन नहीं दे सकते। एक बंदा उसके 10% चांस है, बैंक बोलेगा वेरी लेस रिस्क, लोन दे दो। अब हमने इस स्ट्रेटजी से लोन बांटे 2020 में, अब 1 साल का लोन था फॉर एग्जांपल, 2021 में वापस मुड़ के देखा किस किस का आ गया। इस साल हमें, हर साल हमें 50 करोड़ का नुकसान होता था, इस साल हमें सिर्फ 10 करोड़ का नुकसान हुआ। वी सेव्ड 40 करोड़ रुपीज विद एन इम्प्लीमेंटेशन, राइट? बिकॉज इस बार हमने प्रेडिक्टिव मॉडल चला के लोन दिए हैं, मशीन लर्निंग को यूज करके लोन दिए हैं, हमने रिस्क अपना कम कर दिया। जिस तरीके के लोग डिफॉल्टर निकलते थे हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए, और उन लोगों को हमने लोन ही नहीं दिया, हमने उन्हीं लोगों को लोन दिया है जो बहुत ही लीस्ट रिस्की थे, राइट? इस चक्कर में क्या हुआ, हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, राइट? हम क्या है, हमने 40 करोड़ रुपए अपने बचा लिए जो हर साल हमारा लॉस हो रहा था, राइट? दिस इज प्रेडिक्टिव। फ्यूचर में जाके लोन करना, उसने डिफॉल्ट करना है, बट मैं लोन देते वक्त पहचानना चाहता हूँ कि इसको दिया जाए या नहीं,
This is machine learning. Got it? Means modeling हम machine learning में पढ़ेंगे सारा. Predictive modeling, machine learning एक ही बात. Machine learning is a rebranded term of predictive modeling. Predictive modeling का मतलब कुछ prediction करो, right? Model बना के कुछ prediction करो. तो prediction कैसे होता है? जब machine learn करती है, machine data learn करती है, वैसे ही होता है. तो machine learning word हो गया कि machine को learn करवाना है हमने. Predictive model हो गया कि prediction करना है. तो एक ही word है. These are synonyms of each other, right? Some years ago we didn't have any term like machine learning, right? आज से 5-6 साल पहले machine learning word नहीं था. हम predictive modeling, statistical modeling यही बोलते थे. But जैसे जैसे Python आया, जैसे जैसे open source आए, unstructured data बढ़ता गया, we started calling it as science, we started calling it as learning, we started calling it as data science, ये सब. तो data scientist कोई word नहीं होता था 2015-16 तक, right? So we were all consultants या analysts या data analysts या business analysts. मेरी पहली designation was data analyst, and then I was a consultant, senior consultant. Then I was lead business analyst. Now I am a lead data science manager. Right? तो ये term जो है वो एक ही बात को बार-बार बोलने के अलग-अलग तरीके हैं with advancement in technology and time and open sources. एक ही बात है वो. Don't worry about that. Sahil, is W required like in the data W is science? not required. मैंने W पे आज तक काम नहीं किया, ठीक है? तो W is not required. That means so if you अगर जरूरत होती तो आज तक मैं सीख चुका होता, क्योंकि data science में I know every skill from SAS, R, Python, Hive, PySpark, machine learning, NLP, AI, apart from W, which is the easiest thing, right? तो मुझे लगा कि अभी जरूरत ही नहीं है इस टूल की और ना सीख के कोई फायदा है, तो इसलिए हमने नहीं किया. But the thing is, आप लोग एंट्री वाले लोग, मेरी एंट्री अच्छे से हो गई थी, ठीक है? आपने एंट्री करनी है, तो Tableau is one tool जो आपकी एंट्री इजीली करा सकता है, बिकॉज वहां पे एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, राइट? 1+1 अगर 2 होता है तो 1 साल एक्सपीरियंस वाला भी वही बोलेगा, 0 एक्सपीरियंस वाला भी वही बोलेगा, 10 साल एक्सपीरियंस वाला भी वही बोलेगा, राइट? तो Tableau जो चीज है उसमें कोई इनोवेशन नहीं है. तो Tableau जो है वो एंट्री इजी करवा सकता है, पैसा कम मिलेगा बट एंट्री इजी हो सकती है. डेटा साइंस है, इट रिक्वायर्स एफर्ट, राइट? डेटा साइंस में तुम्हें पैसा मिलेगा तो कोई भी चीज जो पैसा देगी वो कुछ तो तुम्हारे से निकालेगी, राइट? तो उसमें टाइम लगता है. तो अगर आपको बहुत सारे लोग ये रूट फॉलो करते हैं कि Tableau से घुस गए और उसके बाद इंटरनली एक आध प्रोजेक्ट किया और मूव कर गए, तो ये भी एक शॉर्टकट रूट है. इसमें पैसा स्टार्टिंग में कम मिलेगा. डेटा साइंस में थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि 3 महीने हो गए अब जॉब कहाँ है मेरे पास, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम, यू हैव टू गिव इंटरव्यूज, फिर पता लगेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या चीजें आती हैं, क्या चीजें नहीं आ रही. आपको मे भी आता हो बट इंटरव्यूअर ने घुमा के पूछ लिया. अब आपने रियलिटी में तो काम नहीं करा हुआ, तो आप कितने ही आंसर कर लोगे, राइट? डेटा साइंस एक ब्रॉडर चीज है, राइट? उसमें पाइथन भी है, मशीन लर्निंग भी है, स्टैट्स भी है, ठीक है? Tableau एक इंडिपेंडेंट स्किल है जो 2 हफ्ते में सीख सकते हो. तो Tableau अगर ऐड कर लोगे तो Tableau can help you enter the industry easily, ठीक है? और डेटा साइंस में थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, बट जब होगा Tableau along with data science, like Tableau along with data science. अकेला Tableau करके कोई फायदा नहीं है. फिर साल बाद फिर सोचोगे कि कोर्स कर लेते हैं डेटा साइंस का, वो फायदा नहीं है. करना तो साथ में करो या तो ना करो, ऐसा, ठीक है? बट डेटा साइंस का तो हम लोग करिए. हाँ जी, डेटा साइंस इसी कोर्स के साथ हम जो पढ़ेंगे इसी के साथ Tableau भी कर ले तो इट विल बी बेनिफिट फॉर इस कोर्स के साथ Tableau अगर आप ऐड कर लोगे तो वही बेनिफिट है, क्योंकि आपको डेटा साइंस का तो पता लग जाएगा सारा कुछ. अब मे बी वो सारा कुछ करने के बाद भी हमारा टाइम लग जाए इंटरव्यू क्रैक करने में, राइट? क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं. तो Tableau जो है वो आप Tableau वाले जॉब्स तो अप्लाई कर पाओगे ना एटलीस्ट. तो Tableau वाले रूट से अंदर घुस गए और डेटा साइंस का साथ साथ पढ़ते रहे और इंटरव्यू देते रहे, राइट? तो ये होगा. Tableau जो है एंट्री इजी करा सकता है, और बट कोर नॉलेज तुम्हें डेटा साइंस की चाहिए, राइट? Tableau वाले लोग जो हैं वो सब डेटा साइंस करना चाहते हैं आज के दौर में. जितने Tableau वाले लोग होते हैं, एवरीवन वांट्स टू मूव टू डेटा साइंस, क्योंकि उन्हें पता है कि करियर रुक जाता है एक टाइम पे जाके और पैसा नहीं बढ़ाया जा सकता बिकॉज स्किल सेट नहीं ऐड कर रहे हैं, राइट? तो टेक्निकल वर्ल्ड में अगर आपके पास
सेट ऐड नहीं कर रहे हो तो बस फिर आउटडेटेड हो, राइट। एक चीज जो 2 हफ्ते में सीखी जा सकती है उसके बेस पे आपको पैसा क्यों मिलेगा, राइट। सस्ते में भी लोग मिल जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट की कमी थोड़ी है, ठीक है। तो इसलिए हमें ऐसा कस्टमाइज्ड रूट फॉलो करना है जिसके थ्रू हमारा काम भी हो जाए और हमें चीजें भी पता हो। ऐसे में नहीं कि हमने ABC सीख के अब बोल रहा है जॉब मिल जाए और फिर बाद में हम इंग्लिश सीखेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो हमें ऐसा रूट फॉलो करना है जिसके थ्रू हम घुस भी जाएं और आता भी हो, राइट, ताकि हम मैनेज कर पाए कि आगे पीछे करके हम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो नॉलेज की टर्म्स में हमें पीछे नहीं रहना, मेन चीज वही है, नॉलेज ही आगे बढ़ाएगी। नहीं तो फिर टाइम बाद फिर हम बोलेंगे कि भाई फंस गए हम। अब जैसे कोरोना आ गया, राइट, तो डेटा साइंस वाले जॉब्स थी जहाँ पे लोगों की जॉब्स नहीं गई, बाकी हर फील्ड में जॉब्स गई हैं लोगों की, राइट। बहुत सारे लोगों की मुझे लिंक्डइन पे रोज 10 मैसेज आते हैं जहाँ पे पीपल आर जॉबलेस, राइट, ठीक है, कि इफ देयर इज एनी एंड ऑल। तो डेटा साइंस एक ऐसा चीज है जहाँ एक छोड़ोगे तो दूसरी मिल जाएगी, बट बाकी फील्ड में ऐसा नहीं होता कि एक छोड़ी तो कल दूसरी मिल जाएगी। लोग 8-8 साल भी वेले बैठे रहते हैं। तो ऐसी फील्ड में घुसना चाहिए जिसकी मार्केट, डेटा कभी खत्म होगा नहीं होगा, राइट। बिजनेस है तो डेटा है, बिजनेस कभी बंद नहीं होता है। बिजनेस होगा, दुकान ही है आपकी, चाहे वहां पे भी डेटा जनरेट हो रहा है, ये खरीदा ये नहीं गया, ये तो, राइट। तो बिजनेस जो है वो डेटा पे डिपेंडेंट है, कस्टमर पे डिपेंडेंट है। तो ये एक ऐसी चीज है जो जब तक यूनिवर्सल तब तक रहेगा। तो ऐसी फील्ड में घुसो जिसमें आपका करियर आने वाले सालों में सेट रहे और आपको ये इनसिक्योरिटी ना हो कि भाई जॉब चलेगी तो क्या करेंगे, राइट। डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको ये चीज आपके दिमाग से निकल जाएंगे कि कोई ना, मार्केट में बहुत जॉब्स है, ठीक है, तो एक नहीं तो दूसरी सही। तो ये सिक्योरिटी डेटा साइंस में देता है। टाइम लगेगा, बट जब भी एंटर कर जाओगे उसके बाद अगला पिछला सारा कवर कर जाओगे। Sahil, one last question from my side. Do you include like Python from the development perspective, or it is like how much is required for this machine learning, only analytics part? नहीं, दिस इज द डेटा साइंस कोर्स ओनली। तो डेवलपमेंट क्यों करेंगे, हम सॉफ्टवेयर थोड़ी बनाने हैं हमने, Yeah, that's राइट। हमें सिर्फ डेटा साइंस करना है, हमें मशीन लर्निंग करनी है। डेवलपमेंट में डेटा कुछ नहीं है, डेवलपमेंट में डेटा नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है, और डेटा साइंस में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। हमें सोल्यूशनिंग करनी है, हमें एनालिसिस करना है, हमें प्रेडिक्शन करनी है, हमें फोरकास्ट करना है। उसके लिए हमें जो पाइथन चाहिए वो हमें पैकेजेस होते हैं पाइथन में बहुत सारे, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, साइकिट-लर्न, ये सब चीजें हमें सीखनी है। डेटा साइंस में ये चाहिए। पाइथन जो है बहुत पुरानी लैंग्वेज है, 40 साल पुरानी लैंग्वेज है, बट पाइथन का बूम आया 2 साल पहले। क्यों? क्योंकि हमें पता लगा कि इससे डेटा साइंस भी कर सकते हैं, इससे हम इमेजेस, ये डॉग है, ये कैट है, पाइथन कैन आंसर मी, मशीन लर्निंग कैन आंसर मी, जो ह्यूमन बींग्स कर पाते थे, राइट। ये पहले पॉसिबल नहीं था। सैस नहीं कर सकता था अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम। सैस वाज द ओनली टूल इन द मार्केट प्रायर टू 2014-15, ठीक है। तो सैस ये नहीं बता सकता ये कुत्ता है ये बिल्ली है, राइट, ये शाहरुख खान है ये सलमान खान है, ये नहीं बता सकता। पाइथन कैन टेल यू विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, राइट। तो इसमें डेवलपमेंट का तो कोई स्कोप नहीं है, राइट। तो पाइथन तो बहुत पहले का लैंग्वेज है, बट उसको कोई यूज नहीं करता था। जावा यूज होता था, C++ यूज होता था, .NET यूज होता था, PHP यूज होता था, पाइथन नहीं यूज करते थे। पाइथन अब यूज होना शुरू हुआ है, और वो जो पाइथन यूज हो रहा है वो डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज हो रहा है। डेवलपमेंट के लिए वो इक्का दुक्का चार कंपनियों में हो रहा होगा, ठीक है। तो सारा पाइथन है वो यूज हो रहा है मशीन लर्निंग के लिए, डेटा साइंस के लिए। तो आज के दौर में कोई भी डेटा साइंस जॉब है उसमें आपको पाइथन चाहिए, ठीक है। Sir, are we going to learn AI? हाँ जी, AI हम सीखने वाले हैं। AI जो है ना वो 1 साल का कोर्स है, तो हम यहाँ पे मशीन लर्निंग सीख रहे हैं। AI जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन है। मशीन लर्निंग ही होता है AI भी। AI में भी हम मशीन को ही सिखा रहे हैं, बट AI में हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे चैटबॉट बना दिया, राइट। जी। तो पीछे बंदा तो बैठा नहीं है, मशीन कैसे समझ रहा है कि मैंने क्या पूछ लिया, वेयर इज माई ऑर्डर, तो उसको कैसे समझ लगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है। तो AI जो है वो 1 साल का कोर्स है। तो उसके लिए हमें ये जो हम इस कोर्स में कर रहे हैं वो ये सारी चीजें चाहिए। AI का स्कोप बहुत कम है। चैटबॉट एक बार बन गया दोबारा थोड़ी कंपनी बनाएगी। स्विगी ने एक चैटबॉट बना दिया, क्या रोज बनाएंगे वो चैटबॉट? नहीं बनाएंगे। तो जो स्कोप है उसका बहुत लिमिटेड है, वो सिर्फ प्रोडक्ट कंपनीज बनाती हैं वंस इन अ व्हाइल, दैट्स इट, ठीक है। और वो बहुत बड़ी लर्निंग है। मशीन को सिखा देना इंग्लिश इज अ बिग थिंग, राइट, कि बंदे को रिप्लेस कर लिया मशीन ने, ठीक है। तो वो 1 साल का कोर्स है जिसमें हमें कैलकुलस, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये मशीन लर्निंग के सारे कंसेप्ट, पाइथन, सब कुछ आना चाहिए। तो दैट्स अ वेरी वेरी बिग कोर्स।
तो वो तभी हो सकता है जब आप इंडस्ट्री में या तो काम करते हो, तुम्हें अवेयरनेस है कि यहाँ कहाँ पे हम एआई लगा सकते हैं, कौन से सोल्यूशन कर सकते हैं, या हमारे पास हमें सीखना ही है और जॉब नहीं चाहिए, तब कर सकते हो एआई। तो फिर हम साल भर पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो हमें वो कोर्स चाहिए जो हमें एंटर कराए इंडस्ट्री में और जिसकी वैल्यू हो। जो मार्केट में जॉब्स, अगर आप कोई भी जेडी देखोगे तो वहाँ पे पाइथन, मशीन लर्निंग, सीक्वल ये वर्ड लिखे होंगे, एआई नहीं लिखा होगा। एआई जहाँ लिखा होगा वो एक्सपीरियंस लेवल पे लिखा होगा, राइट। आपको मैनेजर रोल पे नहीं जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में इसकी था कि आपको एआई चाहिए होगा। एआई जो है वो रिसर्च लेवल टॉपिक है, आज भी लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, आज भी लोग उसको इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मशीन 60% चीजें ही सही बोलता है। मैंने जैसे ये सिरी या हेलो गूगल, ये वाली चीजें हैं, ये क्या है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीजें हैं, राइट। तो ये फेल हो जाती है। इसको मैं घुमा दूं कि व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू, तो वो कहेगा आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो मतलब फुल प्रूफ नहीं है। इंसान बता सकता था इसका आंसर कि इसका मतलब क्या है, पर मशीन नहीं बता सकती। मशीन को किस लेवल का ट्रेन कर लोगे, नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें R&D वाली चीजें हैं, इसमें सदियां लग जाती हैं। ये एक्सपीरियंस कोई बंदा जो ऑलरेडी एनालिटिक्स में काम करता है तो उसके लिए है ये कोई एंट्री लेवल जॉब नहीं देगा, क्योंकि जिस काम को करने के लिए 1.5 साल चाहिए वो जॉब कहाँ से दे देगी हमें। ओके सर। AI जो है वो इसके बाद का वर्जन है। वंस यू नो दिस थिंग, यू आर इन इंडस्ट्री, नाउ यू नो कि AI में चाहिए मुझे या नहीं। AI वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है या कुछ ऐसा सोल्यूशन बनाना है, और वो जनरली फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, इस तरह की प्रोडक्ट कंपनीज काम करती है। फेस रिकॉग्निशन बना दिया, राइट। जैसे फेसबुक पहचान देता है एक ग्रुप फोटो में से ये तुम हो, कभी आपने शेव कर रखा है, कभी नहीं कर रखा, कभी साइड में देख रहे हो, कभी आपने स्पेक्स लगा रखे, फिर भी वो पहचान लेता है ये तुम हो, राइट। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं AI की। ये बहुत बड़ी पढ़ाई है, तो इसके लिए 1.5 साल का वेला टाइम चाहिए तो कर पाओगे। तो वो हमें उसमें उस रूट पे जाना ही नहीं है जो रूट हमें कहीं ना लेके जाए, राइट। उन रास्तों पे हमें नहीं जाना। Okay. I think this was all from my side. Any other questions? So we are starting a batch from September 3rd week, ठीक है। September 3rd week we'll start this batch. जिन लोगों को टैब्लू भी करना होगा तो you can let me know कि जिन लोगों को टैब्लू भी करना है साथ में, तो we can customize and कुछ हम कर सकते हैं उस पे। बट टैब्लू जो है वो है एंट्री करा देगा, बट पैसे नहीं मिलेंगे उसमें इतने, क्योंकि हर बंदा क्लेम कर देता है मुझे टैब्लू आता है। तो इसलिए हमें वो टूल चाहिए जो हमें मार्केट में भीड़ से अलग करें, राइट। भीड़ बहुत है आजकल, डेटा साइंस का इतना बूम है कि हर दूसरा बंदा क्लेम करता है मुझे भी आता है, मुझे भी आता है, बट आता नहीं है किसी को। जो रियलिटी में पूछा जाता है इंटरव्यू में, नौकरी थोड़ी लगती है। क्लेम करते हैं कोर्स कर रहा है, कोर्स कर रहा है, कोर्स कर रहा है, बट जॉब थोड़ी लग रही है। जॉब इसलिए नहीं लग रही क्योंकि उनको वो कहावत थी जो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, वो वाली बात है उनके साथ। उनको आधी चीजें पता है, इंटरव्यू 2 सवाल पूछ के ही पता लगा लेता है कि ये बंदा कोर्स करके आया है या पढ़ के आया है, राइट। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है तुम्हें स्मार्ट बनाना कि तुम इंटरव्यू क्रैक कर सके। तुम्हारा CV देख के कोई ये ना बोल सके कि तुमने कोर्स में ये चीजें सीखी होंगी, रियलिटी में नहीं सीखी। तो हमने प्रोजेक्ट भी वैसे ही डाले हैं, हर डोमेन का एक प्रोजेक्ट डाला है। आप किसी बैंकिंग कंपनी में जा रहे हो, वहां पे क्या प्रोजेक्ट चाहिए आपको, राइट। आप एक हेल्थ केयर कंपनी में इंटरव्यू देना चाह रहे हो, वहां पे क्या यूज केस दिखाओगे। तो हर तरह का एक यूज केस, एक टेक्निक, तो वेरी प्लान्ड कोर्स। So there is nothing like that in the market. I have not seen. So I can proudly say कि मतलब इस टाइप का कंटेंट कहीं अवेलेबल नहीं है जो इतना केयरफुली डिजाइन किया गया हो लोगों के बारे में सोचते हुए, ठीक है। तो इवन आफ्टर द कोर्स अगर आपको लगता है कि यू हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे पूरा कोर्स फिर से रिवाइज करना है, मेरे 2-3 बैच चलते हैं पैरेलली विदाउट पेइंग एनीथिंग। यू कैन रिवाइज द एंटायर कोर्स अगेन, राइट। यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग। आपका पाइथन हो गया, आपको पाइथन आ गया, बट मशीन लर्निंग में भी समझ नहीं आया ज़्यादा अच्छे से। यू वांट कि मैं मशीन लर्निंग दोबारा कर लूँ, तो जिस बैच में मशीन लर्निंग शुरू होगा you can come in that batch. You can attend multiple classes of the same thing. The objective is to make sure you get a job, you get satisfied. So ये इस मॉडल से we are working to make you equipped with everything that is required. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या करिकुलम देखोगे, वहाँ पे एक एल्गोरिदम होगा डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री एक बहुत ही आउटडेटेड एल्गोरिदम है जो इंडस्ट्री में कोई नहीं यूज करता, राइट। बट वो अगर आप किसी को बोल दोगे, किसी कोर्स में आप करके आए हो कि मैंने डिसीजन ट्री पे मॉडल बनाया, आपको पता ही नहीं है रियल वर्ल्ड में ये यूज होता है या नहीं, राइट। ये तो कहीं नहीं लिखा होगा।
ठीक है, तो इंटरव्यूअर वहीं पे समझ आएगा कि बस कि तुम फर्जी हो। ठीक है, तो हम ये चीजें भी मेक श्योर करके चल रहे हैं कि क्या क्लेम करना है, क्या नहीं क्लेम करना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। जो चीजें यूज ही नहीं होती, जो चीजें 3 साल पहले मार्केट ने बोल दिया कि ये सब चीजें फालतू है, इसके एडवांस वर्जन है, अगर हम बोल रहे हैं ये कर रहा है हमने, तो मतलब वी हैव नो क्लैरिटी ऑफ व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग इन आवर सीवी, राइट। तो हम ऐसी चीजें भी ध्यान में रख के चल रहे हैं ताकि एक जो बंदा जो काम कर रहा है रियल वर्ल्ड में और आप उनमें कोई डिफरेंस ना दिखे। ठीक है, तो देयर इज प्लेंटी टू गेन फ्रॉम द कोर्स। बाकी आपकी खुद की समझ है, मेरा तो काम है बोलना, और आई थिंक वी आर गुड। और द क्लासेस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd week मोस्ट प्रॉब्ली। बाकी हम वी कैन कनेक्ट आफ्टर दिस कॉल, यू कैन कॉल मी, यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड विल जो भी आपके डाउट्स होंगे वी कैन डिस्कस, और उस हिसाब से यू कैन डू द रजिस्ट्रेशन, या इफ यू वांट कि मैं कुछ क्लासेस अटेंड करने के बाद रजिस्टर करना चाहता हूँ, वी आर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ दैट एज वेल, राइट। तो ऐसा नहीं है कि पहले पैसे दो फिर क्लासेस लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लगानी है, अगर तसल्ली है तो लगाओ, नहीं तो इट्स ओके, राइट। तो ऐसा है, जैसे टुडे वी हैड 15-20 पीपल, ऐसे हर वीक वी हैव अ डेमो एंड एवरी टाइम वी हैव 15-20 पीपल। तो आपकी खुद की समझ है आपको उस कोर्स से फायदा उठाना है या नहीं। आई विल नेवर फोर्स यू, आई कैन ओनली गाइड यू कि कुएं में पैसे डालने की जगह सही जगह इन्वेस्ट करो, ताकि आज नहीं तो कल उसका फायदा मिले। बट बाकी वो खुद की समझ है, nobody can explain beyond a limit. So feel free to call me after this course, after this class, after this session, and we can discuss any more doubts if you have. ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन? No, thanks sir. We can contact you if like any. हाँ, मेरा नंबर है, मैं उसमें पिंग कर दूंगा फिर से। You can call me, you can message me, and we can discuss things in detail. ठीक है? Okay जी. Thanks. Okay, thank you everyone. Thank you everyone. Thank you, Sahil. Thank you. Bye. Take care.